सर, मैं सीए राजीव अग्रवाल, फिरोजाबाद चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के स्टडी सर्कल की तरफ से मैं एज कन्वीनर अलोंग विद सीए अजय गोयल जो डिप्टी कन्वीनर हैं, उनका साथ आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। थैंक यू सर। हाँ, और सर ये जो अपना जो इसमें टॉपिक है सर, अपना 194Q और 206 वाला जो है टीडीएस का, इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों के, और हाँ, और इसी से रिलेटेड जो है वो ये वेबिनार इसीलिए रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वेबिनार के कंक्लूड होने तक सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। So thanks to all the organizers, members, and the office bearer of the branch, as well as I hope there are other members outside branch also. They have joined, and my close friend Saraji is here. I hope he is here. Yes, Saraji, I have seen Saraji. So we have to discuss one important topic, which is the recent changes in TDS and TCS. And as it was introduced, all the queries must be answered. Yes, certainly all the queries must be answered. So if any member have any queries, certainly we will focus on the queries aspects. So firstly, I am discussing the basic provisions along with certain circulars being issued. I hope, and I have already circulated this PPT, copy of PPT to the branch. I hope members have already received, and so you can go through even after seminar. PPT is already with you. Section 206C 1H, which was introduced last year from October 2020, and since introduction of subsection 1H of section 206C pertaining to TDS provisions, hue and cry was in the market. Software changes were also required. Then in respect of certain transactions, clarifications was also required. Board has already issued circular number 17/2020 dated 29th of September 2020 pertaining to the provision of section 206C 1H and other provisions as well. And now this year government has introduced section 194Q, where the burden has been shifted from the seller to purchaser, but not in all cases, in some of the cases only. I hope in this background we have to discuss. Again, the board has issued circular. One of the important circular is circular number 13/2021 dated 30th of June 2021, which is the important circulars. So we must discuss these circulars. So many clarifications being issued by way of these circulars. Then another important point is circular number 11/2021 dated 21st of June 2021. We will discuss some portion of circulars which is relevant here also. And one circular 12/2021 dated 25th of June 2021, where certain dates were extended, including the filing of statements of TDS and issue of certificate under TDS, etc. So we will discuss broadly, cover all these things. If some time will permit, certainly we will discuss other new provisions which was introduced either in this Finance Act 2021 or last year Finance Act 2020. So if time will permit, certainly we will discuss, but our focus will be mainly on 194Q and 206C 1H. Another provision which is also making hue and cry, which is the newly introduced section 206AB, where if ITR not filed in for the preceding years, then also higher rate of TDS is there. So we will discuss this provision also if time will permit or members are interested in this. But firstly, we will discuss section 194Q, which is more important
for all of us. So I am just going through this chart. Yes, this is the provisions which we must understand how these TDS and TCS provisions are applicable. Mind that section 206C subsection 1H is also continuing. So in some of the cases, section 206C 1H will be applicable, whereas in other cases, section 194 Q will be applicable. So what are the circumstances and how these sections will interplay and how these sections will be applicable, we must understand. Firstly, note that there are 4 situations we must understand. One situation where seller turnover or sales or gross receipts exceed rupees 10 crore and buyer turnover or gross receipts or sale also exceeds rupees 10 crore, and that too whenever we say turnover or sales or gross receipts, this must be considered of the preceding financial year. So suppose this provision of TDS 194Q is applicable from 1st of July 2021 for this financial year 21-22, then the turnover of 10 crore must be considered of the financial year 2021. So last year financial year we have to consider. So in first situations where seller turnover or gross receipts or sale exceed rupees 10 crore, number one, and buyer sales turnover or gross receipts also exceed rupees 10 crore. So दोनों का ही 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में टीडीएस की प्रोविजन लगेगा या टीसीएस का लगेगा? इस केस में 194 क्यू लगेगा, टीडीएस का प्रोविजन लगेगा, बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा. नंबर 2, सेलर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ वेयर एज बायर टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़. तो इस केस में क्या है कि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो 194 क्यू से ये बाहर हो गया. इसमें टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे 206C1H. इसमें जो सेलर है वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा और जमा करेगा. थर्ड, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है. सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है. टीडीएस का प्रोविजन लगेगा अंडर सेक्शन 194Q. और लास्ट, जिसमें सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है और बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से नीचे है, तो इसमें ना टीडीएस लगेगा ना टीसीएस. मतलब 206C1H की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. अदरवाइज कोई प्रोविजन 206C के हैं वो लगेंगे, लग सकते हैं, लेकिन इसमें 194Q या 206C1H नहीं लगेगा. मेरा ख्याल है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती है. यदि ये बात समझ आ गई, इतनी यदि याद हो गई तो हम आगे बढ़े. मेरा ख्याल है इसमें यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोजिशन है. आगे इसी का एनालिसिस आगे चलेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस की क्लैरिटी चाहिए. ये 4 प्रोपोजिशंस है, चारों प्रोविजंस हमने क्लियर कर दिया. इसके अलावा और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, और चारों की क्लैरिटी हमने दे दी. यदि ये पॉइंट क्लियर है तो हम इसके और फर्दर एनालिसिस में चलेंगे. यहाँ कोई डाउट है क्या? इस पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. राइट? नहीं सर, आगे चलिए. आगे चले. अब हम इसमें जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स बिजनेस की देखनी है. इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोप्राइटरशिप या कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कोई कंसर्न है, उसमें टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, सेल्स बिजनेस के भी हो सकती है और नॉन बिजनेस के भी हो सकती है. तो हमें बिजनेस की ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या सेल्स देखना है, सिर्फ बिजनेस का देखना है. जो बिजनेस का नहीं है वो नहीं देखना. पहला पॉइंट. और ये जो टर्नओवर है 10 करोड़, ये हमें जो यदि हम टीसीएस के प्रोविजंस में जाते हैं तो हमें इंक्लूडिंग जीएसटी लेना है. यदि हम टीडीएस के प्रोविजंस में रहते हैं 194Q में, तो हमें बेसिक फिगर लेनी है माइनस जीएसटी. मतलब जीएसटी की फिगर को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए टर्नओवर, सॉरी,
ये जो टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो टर्नओवर जनरली एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है। हालांकि हाँ, कई जगह रिपोर्टिंग पर्पस के लिए टैक्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, पर जनरली टर्नओवर में टैक्स की फिगर नहीं होती है। टर्नओवर इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिसीट्स और अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और जीएसटी तो ऊपर से है, इसलिए इसमें जीएसटी का फिगर कोई कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। अभी 50 लाख वाले में जब हम आएंगे तो वहां एक्सप्लेन करने वाली बात है। जो एक इसके साथ कंडीशंस ये भी लिखी है कि ये तो हमने टर्नओवर का ले लिया कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे हमने ये कर लिया। अब दूसरी बात ये है कि इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो परचेज और सेल है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यदि हम परचेजेस के ऊपर टीसीएस का प्रोविजंस की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जैसा कि सर्कुलर ने लिखा है। और यदि हम टीडीएस जो 194 क्यू में बात करते हैं, मान लीजिए हम परचेज करते हैं और कोई सप्लाई मुझे करता है और 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर रखी गई है, तो उस केस में हमें परचेजेस के अंदर टीडीएस का जीएसटी का फिगर नहीं लेना है। हमें बेसिक अमाउंट जो 50 लाख हम कैलकुलेट करेंगे और या टीडीएस का अमाउंट जिस पे काटेंगे उसमें हमें जीएसटी की फिगर नहीं लेनी है, जीएसटी फिगर माइनस करके लेनी है। और आगे बढ़ते हैं जरा। तो दो बात हो गई, दो कंडीशंस हो गई जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें टर्नओवर ध्यान रखना है कि हम यदि सेलर हैं तो हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या नहीं है, एक बात। और वो बिजनेस की ली जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो 10 करोड़ से ऊपर है यदि हम सेलर हैं और हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, बायर का चेक करना पड़ेगा। बायर का क्या है, क्या बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है? तो बायर का टर्नओवर यदि 10 करोड़ से ऊपर है और ट्रांजेक्शन 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो भी है, तो ऐसे केस में जो बायर है वो हमारा टीडीएस काटेगा, जमा करेगा। और यदि बायर टीडीएस काट के जमा करेगा तो हमें टीसीएस के प्रोविजंस में हम नहीं रहेंगे। अभी हम इन सब पहले कंक्लूजन बता दो मोटा मोटा, बाकी हम लॉ में चले जाएंगे कि ये प्रोविजंस सब लिखे कहाँ हैं। ये सारे प्रोविजंस एक एक करके जहां लिखे हैं वो भी बता देते हैं, पर मोटा मोटा बात क्लैरिटी के लिए जो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सेमिनार शुरू होने में 15-20 मिनट 25 मिनट तो जो बात बैठ जाती है वो दिमाग में चली जाती है, बाकी तो उसके एनालिसिस चलते रहते हैं। तो इसलिए मोटी मोटी बात ये है कि यदि हम सेल कर रहे हैं और हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, फिर परचेजर का क्या है, परचेजर जो परचेजर है उसकी टर्नओवर क्या 10 करोड़ से ऊपर है, वो यदि उसकी 10 करोड़ से ऊपर है तो टीडीएस काटेगा 194 क्यू में, हमें टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बात है। तो यदि ये सिचुएशन है तो हमें उसे डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए और उसका कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जिसमें ये दिखता हो कि उसकी टर्नओवर बिजनेस की 10 करोड़ से ऊपर है वो भी ले लेना चाहिए, ताकि हम टीसीएस नहीं ले कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्लैरिटी रहे कि हम क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसी तरीके से यदि सेलर का, मान लीजिए हम सेलर है, हमारी 10 करोड़ से ऊपर है लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, उसने डिक्लेरेशन दे दिया, अपनी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दे दी और डिक्लेरेशन दे दिया कि उसकी 10 करोड़ से नीचे है, तो आप टीसीएस कलेक्ट करते रहिए और जमा करते रहिए। जो तो इस तरीके से ये प्रोविजन चलेगा। हमें आपस में बायर और सेलर को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों के पास डिक्लेरेशन होना चाहिए कि किसकी टर्नओवर किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और साल की ट्रांजैक्शन भी 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो जानी चाहिए। यदि 50 लाख से नीचे रह गई साल की ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी सेल के परचेज के केस में, तो हमें टीडीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, हाँ कुछ बोल रहे थे, कोई क्वेश्चन था शायद। राइट, करंट ईयर में देखनी है कि प्रीवियस ईयर में? कौन सी 50 लाख की टर्नओवर? 50 लाख करंट ईयर में, 50 लाख करंट ईयर में देखना है और 1 अप्रैल 2021 से ही देखना है, 1 जुलाई से नहीं देखना, 1 अप्रैल 2021 से ही देखना है, करंट ईयर की देखनी है। सही है सर। टीसीएस के लिए टर्नओवर की लिमिट है, उसमें सर सेल प्लस जीएसटी करके निकालेंगे? नहीं, पर जो 50 लाख वाली लिमिट है उसमें यदि आप सेल करते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूड करके निकालेंगे। यदि आप परचेज करते हैं 194 क्यू में है तो आप जीएसटी माइनस करके निकालेंगे। सर 10 करोड़ के लिमिट में जीएसटी जोड़नी पड़ेगी? नहीं जोड़नी पड़ेगी, 10 करोड़ में जीएसटी नहीं जोड़नी पड़ेगी। ये तो टर्नओवर है, टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स और सेल है जो इंस्टीट्यूट ने ये, क्योंकि इनकम टैक्स में तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना इसके ऊपर क्लैरिटी है। इसमें जो टर्नओवर या सेल होती है that must be pertaining to the sale of goods and that should be exclusive of GST। ये तो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। ठीक है सर, क्लियर हो गया? मेरा ख्याल है ये 50 लाख और 10 करोड़ वाले क्लियर हो गए। ओके सर।
ओके तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं पहले मोटिव जो मेन बात है वो बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, तो फिर बाकी तो एनालिसिस में चले जाएंगे, फिर आप जितना भी करेंगे वो चलेगा। राइट, अब आइए जरा इसके ऊपर आप आइए, देखिए क्या है। अब 3 सेक्शंस हमारे पास हैं। हमारे पास सेक्शंस क्या हैं? देखिए 194 की रेजिड्यूरी प्रोविजन है। क्या मतलब है? और 206C 1H भी रेजिड्यूरी प्रोविजन ही था। कैसे था? देखिए टीसीएस और भी कई गुड्स हैं जिसपे टीसीएस के प्रोविजन स्पेसिफिकली लिखे गए हैं। सेक्शन 206C1 में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टिम्बर और ये कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस अलग से लिखे गए हैं। तो कई सारी चीज उसमें आइटम आ रही है जो टीसीएस के प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखे गए हैं। जो सेक्शन 206C 1H आया वो इन जनरल फॉर एनी गुड्स के लिए आया जो अदरवाइज स्पेसिफिक प्रोविजन में कवर नहीं है। मान लीजिए हम सेक्शन, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉ पढ़ना कैसे पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं तरीका। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 206C। सबसे पहले आप सेक्शन 206C को पढ़िए। देखिए आपका ट्रांजेक्शन क्या इसमें टीसीएस में कहीं कवर होता है, चेक करिए। क्या 1 में कवर होता है, 1A में कवर होता है, 1C में कवर होता है, 1F में कवर होता है या 1H में कवर होता है? यदि आपका ट्रांजैक्शन 1H को छोड़ के बाकी में कहीं भी सेक्शन 206C में कवर होता है तो टीसीएस के प्रोविजंस ही लगेंगे, टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। पहली क्लैरिटी। दूसरी बात, अब हमने देखा कि ये प्रोविजंस 206C के एप्लीकेबल है 1H को छोड़ के, 1H में नहीं है। मतलब जो पीछे साल नया प्रोविजंस आया था 50 लाख और 10 करोड़ वाले, उसमें नहीं है। उसको अलावे कोई टीसीएस के प्रोविजंस में कवर है, आप टीसीएस ही रहेगा, टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि ये ओवरराइड करता है। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजंस में आते हैं, क्या सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है? एक ये भी नया सेक्शन है जिसके बारे में ज्यादातर जगहों पे चर्चा नहीं है, लेकिन ये भी सेक्शन समझने की जरूरत है कि क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करते हैं और इंटरेस्टिंगली इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तो सेक्शन 194 की और ऐसा प्रोविजन जीएसटी में भी है। तो हमें शायद अभी समय मिलेगा, अब देखते कितना समय मिलता है, जितना भी समय मिलेगा हम उसको आपको कोशिश करेंगे क्लियर कर देने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 194Q में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो ई कॉमर्स इंटरमीडियरी हैं, जो जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, और फिर वहां से कस्टमर को वो गुड्स मिलता है, तो उस केस में भी सेक्शन 194O लगता है। उस 194O में यदि ये ट्रांजेक्शन कवर हो गया, आपका जो सेल ट्रांजेक्शन है वो 194O में यदि कवर हो गया तो ये 194Q में नहीं लगेगा, 194Q से ये बाहर हो गया और ये टीसीएस से भी बाहर हो गया। आगे चलते हैं जरा, ये क्लैरिटी आ गई। अब यदि आपका जो है 206C में भी कवरेज नहीं है, 1H अभी माइनस कर दीजिए, 206C में मतलब टीसीएस में भी कवर नहीं है और वो सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर भी नहीं है, तो अब आपको पहुंचना पड़ेगा। अब 2 सेक्शंस आपके रह गए, 194Q और 206C 1H, 2 रह गए। यदि ये 194Q में कवर हो जाता है तो 206C 1H से बाहर हो जाएगा। यदि ये 194Q में कवर नहीं होता है तो 206C 1H लगेगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ी क्लैरिटी नहीं हो सकती। यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यदि इसमें डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। क्या ये मैटर क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? कैसे पर क्लियर हो गया? कोई डाउट रह गया? किसी मेंबर का कोई डाउट रह गया? यदि ये क्लियर हो गया तो आपको लॉ बहुत सारा क्लियर हो गया। फिर ज्यादा बचा नहीं, फिर तो केस लड़ने के लिए पॉइंटर बचेगा, जो ऑपरेशनल पार्ट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। यदि ये चार्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको इंटरप्ले क्लियर हो गया कि 194Q, 194O, 206C 1H और 206C के बाकी प्रोविजंस कैसे लगते हैं। यदि किसी को कोई डाउट इस स्टेज पे है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट फ्रॉम एनी मेंबर्स? यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? नो डाउट एट ऑल? नो सर, नो सर। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो इतनी डाउट है नहीं। फिर तो मेरा ख्याल है सेमिनार सक्सेसफुल हो गया, जो है 2 स्लाइड में सेमिनार सक्सेसफुल हो गया, बहुत ज्यादा बचा नहीं। आइए हम सेक्शन 206C1H को भी जरा समझ लेते हैं, फिर हम कंपैरेटिव कर लेंगे 194 क्यू पढ़ के कि दोनों में क्या फर्क है और कैसे चल रहा है। नंबर 1 पॉइंट, जो सेक्शन 206C1H लास्ट ईयर आया था, सेल ऑफ एनी गुड्स, इंपॉर्टेंट है, ये सर्विस पे नहीं है, ये सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है, और ये 1 अक्टूबर 2020 से आया था। कलेक्ट कौन करता है टैक्स? जो सेलर है वो टैक्स कलेक्ट करता है। जब टीसीएस की बात होती है तो टीसीएस में सेलर कलेक्ट करता है, तो सेलर ये चेक करेगा कि उसकी टर्नओवर कितनी है, 10 करोड़ से ऊपर है लास्ट पीछे फाइनेंशियल ईयर में, यदि 10 करोड़ से ऊपर है, और जो बायर है उसकी 10 करोड़ से नीचे है, 194 क्यू से बाहर हो जाएगा। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वाला ट्रांजेक्शन नहीं है जी, वो 194 ओ से भी बाहर हो गया, 206C1H अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे केस में 0.1% जो रेट है, फिर देखना पड़ेगा कि 50 लाख से ऊपर क्या ट्रांजेक्शन है। अब 50 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन ड्यू द फाइनेंशियल ईयर चेक करना है, इसमें आपको इंक्लूडिंग जीएसटी चेक करना है, और ये पूरे साल की लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन नहीं है। दिस लिमिट इज फॉर द होल ईयर एंड दिस इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच। अब एक्चुअली शुरू में कई लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि इसमें जीएसटी माइनस करके होगा, किसी का था जीएसटी इंक्लूड करके होगा। डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर बनाया, वो सर्कुलर में उन्होंने लिख दिया कि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। यस, एनी कुछ प्रॉब्लम है शायद? एनी क्वेश्चंस? सर एक इशू ये है कि मान लीजिए हम जिससे सप्लायर जिससे माल खरीद रहे हैं, अगर उसका अप्रैल टू जून ही अगर 50 लाख से ऊपर हो गया, बट क्योंकि वो सेक्शन हमारा जो ये टीडीएस का, ये तो 1 जुलाई से लग रहा है, तो वो टर्नओवर नहीं, अब आपका ट्रांजैक्शन उससे कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा है, लेकिन जो हमारा अप्रैल टू जून अगर मान लीजिए 60 लाख रुपए का हमने उससे परचेज कर लिया, राइट, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो जो 10 लाख रुपए हमने जो एक्सेस किया है जून तक, उसके ऊपर क्या स्टैंडर्ड? अरे आप बताइए, आप बायर हैं सेलर हैं? मैं बायर हूँ। आप बायर हैं, तो आपकी टर्नओवर कितनी है पिछले साल की, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की? पिछले साल की मेरी 10 करोड़ से ज्यादा है। आपकी 10 करोड़ से ज्यादा है, और आप बायर हैं, तो आप देखिए जो ये 1 जुलाई से ये ट्रांजेक्शन्स आया है, जो टीडीएस का प्रोविजंस आया है वो 1 जुलाई से आया है, तो 1 जुलाई से पहले तो ये 194 क्यों नहीं रहेगा। अब ये सवाल रहेगा कि जो आपका सेलर है उसकी टर्नओवर कितनी है पिछले साल? उसकी भी 10 करोड़ से ऊपर की, तो वो आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, जून तक जो है वो कर रहे, हाँ वो कर लेगा, और 1 जुलाई से आप टीडीएस लेना चालू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। क्लियर हो गया? तो ये सिचुएशंस आ गई इसके अंदर कि 1 अक्टूबर से सेक्शन 206C1H आया है, तो लेकिन ये जो 50 लाख की लिमिट है, ये इन्होंने फाइनेंशियल ईयर से रखा है, 206C1H में भी फाइनेंशियल ईयर से रखा 1 अप्रैल से, और 194 क्यू में भी फाइनेंशियल ईयर से ही रखा है। और इनमें सर्कुलर ये बहुत साफ और स्पष्ट बोलता है, जो 17 नंबर सर्कुलर है, कि उसके अंदर आपको इंक्लूडिंग जीएसटी की फिगर लेनी है, क्योंकि जो पेमेंट्स या कंसिडरेशन है उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि किसका पैसा किसमें दिया नहीं दिया। इन्होंने बोला कि इंक्लूडिंग जीएसटी आप ले लीजिए। बाकी यदि आप जीएसटी लॉ को पढ़ते हैं तो कंसिडरेशन में जो है जीएसटी सब चीजें इंक्लूड होती है, पर उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होती है। पर इन्होंने जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से कंसिडरेशन का मीनिंग नहीं लिया। जो सर्कुलर इन्होंने बनाया, उन्होंने जीएसटी को पढ़ के नहीं बनाया। इन्होंने जो सर्कुलर इनकम टैक्स में बनाया उसमें इन्होंने लिख दिया कि हमें नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, आप इंक्लूडिंग जीएसटी का फिगर 50 लाख के रुपए के लिए 206C1H में ले लीजिए। लेकिन 194 क्यू में इनको पता था, क्योंकि सर्विस के रिगार्डिंग और कई गुजरात हाई कोर्ट और काफी जजमेंट थे कि जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है, तो इन्होंने पूरा केयर किया। और सर्कुलर में इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा भी कि जो सर्कुलर्स पीछे सर्विस के रिगार्डिंग लिखे गए थे और पीछे जो जुडिशियल प्रिसीजन सब चीजें हैं, उसमें जीएसटी पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, तो बेस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। मेरा ख्याल है ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए जरा एक्सक्लूजन में हम पहुंचते हैं कि 206C1H में क्या चीज एक्सक्लूड होता है, जो क्योंकि अब ये सेक्शन 206C1H भूल नहीं सकते, ये सेक्शन साथ साथ ही चलेगा।
हो सकता है किसी केस में सेक्शन 2061H चले, जैसे हमने डिस्कस किया, कभी में 194Q चले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्शन 2061H खत्म हो गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अभी भी, क्योंकि 194Q 2061H में एक कोई सेक्शंस लगेगा जरूर ज्यादातर केस में, अनलेस की बायर और सेलर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कोई ना कोई सेक्शंस लगेगा जरूर। ये इंपॉर्टेंट है, यदि क्योंकि 10 करोड़ की फिगर बहुत बड़ी फिगर नहीं होती और 50 लाख टर्नओवर भी बहुत ज्यादा, 50 लाख भी सेल या परचेजेस बहुत ज्यादा नहीं होता है। लिहाजा सेक्शन 2061H की भी क्लैरिटी हमें रखनी चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा, यदि नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लेने का। अब हम एक्सक्लूजन में आते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शंस है जो सेल ऑफ गुड्स है लेकिन सेक्शन 2061H से बाहर हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ये तो बाहर हो गई। यदि हम एक्सपोर्ट भी एक तरीके की सेल होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इज ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, दिस इज द फिजिकल मूवमेंट, दिस डेफिनेशन इज पर्टेनिंग टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर कंट्री, बट इट इज आल्सो अ सेल ट्रांजेक्शन। तो कोई सेक्शन 2061H पढ़ के बोल सकता है कि हम तो सेल कर रहे हैं तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, क्यों हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और ये सेल भी 50 लाख से ऊपर है, क्या हमें टीसीएस कलेक्ट करना है? आंसर नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में टीसीएस का प्रोविजंस नहीं लगता है, स्पेसिफिकली लॉ में लिखा हुआ है जहां ये प्रोविजंस है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, यदि टीसीएस के प्रोविजन अदरवाइज कोई सेक्शंस में कवर है, जैसे सेक्शन 206C1 सबसेक्शन 1 में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर एटसेट्रा कवर है। अब ये देखिए, यदि ये जैसे टिम्बर है या कोई इस तरीके का ट्रांजेक्शन्स है, स्क्रैप बेचते हैं या मिनरल्स है या इस तरीके का चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 में कवर है, तो ये 1H से बाहर हो गया, इसमें 1H के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब ये जनरल सी बात है कि ये 206 1H तब टीसीएस में अट्रैक्ट होगा जब टीसीएस के बाकी कोई प्रोविजंस लग नहीं रहे होंगे। जब आप टिम्बर की बात करते हैं तो आपको टिम्बर के बारे में लिटरेचर पढ़ लेना चाहिए कि टिम्बर क्या होता है और जो ट्री है वो क्या होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टिम्बर एंड ट्री। ये जो लॉ पढ़ते हैं उनको पता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ये पढ़ाया जाता है कि टिम्बर क्या है और ट्री क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब आगे चलिए, एक प्रोविजन टीसीएस में और है, आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का मोटर व्हीकल बेचते हैं, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है, 10 लाख से ज्यादा बेचते हैं तो वो भी टीसीएस से कवर है, लेकिन वो प्रोविजन सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F में कवर है, इसलिए लिहाजा ये सेक्शन 206C 1H से बाहर हो गया, तो उस केस में ये प्रोविजंस नहीं लगेगा। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें 2 लोग इंटरेस्टेड पार्टी है जो इस सेक्शन को पढ़ने चाहिए। एक सेक्शन में हो सकता है कि सेक्शन 206C 1H लग जाए, क्योंकि सेक्शन 206C 1F उन ट्रांजैक्शन को कवर करता है जहां पे डीलर जो शोरूम वाले हैं कार के, वो कस्टमर को बेचते हैं, वहां तो ये 10 लाख वाली ट्रांजैक्शन लगती है, लेकिन कार कंपनी भी उन डीलरों को या शोरूम वाले को कार बेचती है, उसमें वो ट्रांजैक्शन 206C 1H में कवर हो सकता है। और आज के डेट में ये हो सकता है कि 194Q में जाके भी कवर हो जाए। यदि 194Q में कवर हो जाएगा तो यहाँ सेक्शन 206C 1H से बाहर हो जाएगा, हमने जस्ट एक्सप्लेन किया। तो जब मोटर कार की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो क्या मोटर कार कंपनी ऑब्वियसली उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होगी, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। जो कार शोरूम वाले हैं उनका भी टर्नओवर 10 करोड़ से जनरली ऊपर ही होता है, जो भी मोटर व्हीकल बेचते हैं, तो उनका टर्नओवर 10 करोड़ से बाहर का यदि ऊपर चला गया तो 194Q में वो कवर हो जाएगा। उस केस में जो शोरूम वाला है वो 194Q में टीडीएस काटेगा, और जब वो कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर से वो टीसीएस कलेक्ट करेगा यदि 10 लाख से ऊपर है। आई होप आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी डाउट है तो अभी हम 5 मिनट में जब ये स्लाइड कवर करके फिर आपसे सवाल ले लेते हैं। गुड अंडर 206C 1H, आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी बेचते हैं 7 लाख से ऊपर, उसमें भी टीसीएस का प्रोविजंस है, तो वो यहाँ से 206C 1H से बाहर हो जाएगा। और इफ टीडीएस प्रोविजन इज एप्लीकेबल, जो हमने जस्ट बताया था कि यदि कोई टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसा कि 194Q में हो रहा है, तो फिर यहाँ टीसीएस के प्रोविजन 206C 1H से
बाहर हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जो स्लाइड हमने अभी डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? नहीं है सर, कंटिन्यू कर लीजिए। अरे वाह, राइट, गुड, बहुत अच्छा। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक सवाल ये आता है कि जो खरीद रहा है, whether tax to be collected from buyer being a person whose income is exempt, तो जो खरीद रहा है सामान वो उसका इनकम एग्जेम्प्ट है, और ये आइडेंटिकल प्रोविजंस आपको टीडीएस में भी मिलेगा। तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, जो इन्होंने सर्कुलर 13/2021 बनाया, क्योंकि जो खरीद रहा है उसके हाथ में उसकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है, पर से एग्जेम्प्ट है, अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट है। कुछ बॉडीज हैं जिनका एग्जेम्पशंस दिया हुआ है, तो यदि उनका इनकम टैक्स एक्ट में या किसी और लॉ से उनको इनकम टैक्स की एग्जेम्पशंस मिली हुई है, तो जो खरीद रहा है उसके हाथ में टैक्स लगता ही नहीं है, तो लिहाजा उसे किसी भी मोड में टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। सो उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि टीसीएस, यदि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीसीएस कलेक्ट करने की है, तो हमें ये इंश्योर हो जाना चाहिए, हमें वो डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए, वो नोटिफिकेशन या कोई जो भी रूल रेगुलेशन वो ले लेने चाहिए, और डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए कि आप एग्जेम्प्ट हैं और आप ये सारे चीज फुलफिल करते हैं, तो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये आइडेंटिकल प्रोविजंस सर्कुलर जो अभी हमने जस्ट रेफर किया था टीसीएस के लिए, ऐसा प्रोविजन टीडीएस में भी है, तो ये रिपीट हो जाएगा, मैं दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं है। तो ये 194Q वर्सेस 206C मेरा ख्याल है हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यदि 206C में 1H को छोड़ दीजिए तो बाकी प्रोविजंस यदि टीसीएस में है 194Q नहीं लगेगा। यदि 206C 1H में कवर है कोई ट्रांजेक्शन तो 194Q चेक करना पड़ेगा। यदि वो ट्रांजेक्शन 194Q में भी कवर होता है तो 194Q ओवरराइड करेगा और 194Q में टीडीएस कटेगा। एक बार टीडीएस कटेगा तो टीसीएस के प्रोविजन 206C 1H नहीं लगेगा, पर एक दूसरे को डिक्लेरेशन रखना पड़ेगा। ये क्लैरिटी हमने आपको दे दी। आगे चलते हैं जरा। अब ये जो सेल कंसिडरेशन है वो सेल कंसिडरेशन बिफोर 1 अक्टूबर 2020 का रहेगा या कैसे रहेगा, ये हमने पहले ये सर्कुलर में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो 206C 1H जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस 1 अक्टूबर 2020 से लगा है, तो लिहाजा यदि 1 अक्टूबर 2020 से पहले यदि सेल के ट्रांजेक्शन्स है और कंसिडरेशन भी सब हो गए हैं तो उसमें टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन दोनों में से एक इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल है या परचेजेस है और पेमेंट्स है, दोनों में से एक यदि वो जो कट ऑफ डेट है कि 1 जुलाई टीडीएस के लिए और 1 अक्टूबर 2020 के लिए, दोनों में एक कोई एक ट्रांजेक्शन लॉ के एप्लीकेबल होने से पहले हो गया है तो वो टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस नहीं लगेंगे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। यदि इस पे कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ लीजिए। ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस में एक थंब लाइन रखना है कि 1 जुलाई, यदि हम टीडीएस की बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई से पहले यदि सेल हो गया है तो उसके अंदर फिर, या परचेज आपने कर लिया है 1 जुलाई से पहले, तो उसमें प्रोविजंस नहीं लगेंगे। यदि 1 जुलाई के बाद होगा उन सारे ट्रांजेक्शन्स में लगेंगे। यदि एडवांस में पेमेंट हो गया है तो वो भी बाहर हो जाएगा। मतलब ये है कि जो भी कट ऑफ डेट है, चाहे टीडीएस या टीसीएस, थंब लाइन ये है कि टीडीएस में 1 अक्टूबर टीसीएस 1 अक्टूबर 2020 से आया था। यदि आपका पेमेंट्स या सेल ट्रांजेक्शन दोनों में से कोई भी कट ऑफ डेट से पहले हो गया है तो आप टीसीएस प्रोविजन से नहीं लगेगा। टीडीएस जो 1 जुलाई 2021 से आया है, इसमें यदि सेल ट्रांजेक्शन, परचेजेस या पेमेंट्स दोनों में से कोई 1 जुलाई से पहले हो गया तो आप इस 194Q से बाहर हो गए। लेकिन हाँ, 194Q से बाहर तो हो सकते हैं, हो सकता है 194Q से आप बाहर हो गए हो लेकिन 206C 1H में कवर हो, ये ध्यान रखना
रखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक कोई क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी, कोई पॉइंट बच गया है तो मुझे बता दीजिए। यस, इसमें क्लियर हो गया ये पॉइंट्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ट्रांजिशनल प्रोविजन एडवांस आ गया, हमने एडवांस दे दिया, परचेज कर लिया, सेल कर लिया कट ऑफ डेट से पहले, ये क्लैरिटी आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन? यस, कोई मेंबर बोल दीजिए कि क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्लियर हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ये हमने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया था कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल में दो पार्टी होती है, और ये 194H में कवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2061F में पहले से ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस, और सेक्शन 2061H जनरल प्रोविजंस है, और 2061F 10 लाख से ऊपर के मोटर व्हीकल के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड करेगा, लिहाजा जनरल प्रोविजन नहीं लगेंगे। एक बात ये हो गई। और दूसरा, जो कार का जो डीलर्स हैं, जो शोरूम वाले हैं, वो जो कार खरीदते हैं कार कंपनियों से, उसमें यदि शोरूम का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो टीडीएस काटेंगे, 194Q में चलेगा। और यदि टीडीएस से में नहीं है तो कार कंपनी का टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर होता ही है, तो फिर टीसीएस में 2061H में कवर हो जाएंगे। तो कार से रिलेटेड, जब मोटर व्हीकल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें 194Q भी लग सकता है, इसमें 2061H भी लग सकता है, और 2061F भी लग सकता है। ये तीनों ही सेक्शंस मोटर व्हीकल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में लग सकते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन हमने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे बढ़ते हैं जरा। Amount on which tax to be collected, whether GST or other tax to be excluded, क्लैरिटी दे दी सर्कुलर के अंदर कि ये इसी तरीके से चलेगा कि यदि टीसीएस के प्रोविजंस हैं तो उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी रखना है, उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर, क्योंकि वो बोलता है कि रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, सो टीसीएस ऑन ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, ऐसा इन्होंने सर्कुलर से बोल दिया है। और ये क्लैरिटी है 17 नंबर सर्कुलर 2020 का, जो 29 सितंबर 2020 को आया था। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जरा। TCS to be collected on the amount of consideration received, so डिस्काउंट का क्या होगा? ऑब्वियसली जो हम रिसीव करेंगे कंसिडरेशन, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब डिस्काउंट को, क्योंकि कंसिडरेशन जो मिलेगा उसके साथ टीसीएस कलेक्ट करना है। ये जीएसटी जैसे नहीं है कि इनवॉइस पे टीसीएस भी चढ़ा दिया। हो सकता है कि आपका इनवॉइस देने के बाद में पार्टी के बीच नेगोशिएशन हो गया, और नेगोशिएशन होने के बीच में दौरान कोई फाइनल डिस्काउंट का कोई चर्चा हो गया, और फाइनली सेलर और बायर कोई डिस्काउंट पे एग्री हो गए, तो हमें ध्यान रखना है कि ये वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अलोंग विथ जीएसटी जो पेमेंट आ रहा है उसके साथ टीसीएस कलेक्ट होगा। तो इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट या किसी तरीके का डिस्काउंट है पेमेंट रिसीव करने तक, तो वो एडजस्टमेंट्स मिल जाएगी। इस तरीके से ये होता है। और गुड्स रिटर्न के केस भी आ सकते हैं, क्योंकि एक बार टीसीएस कलेक्ट कर लिया या पार्टी ने टीडीएस काट लिया 194Q में, तो ये तो जो कट गए और जमा हो गए तो हो गए। लेकिन यदि रिटर्न नहीं गई है और आपने जमा नहीं किया है और गुड्स रिटर्न हो गया, तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में आप कोई एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट और है इसके अंदर जो हमने पढ़ा है, जहां तक आप मेंबर्स के बीच में कोई पेट्रोलियम कंपनी वाले हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों को बोला था कि इस पे किया जाए कि पेट्रोलियम कंपनी क्या कर रही है, क्या वो टीसीएस के प्रोविजंस को कवर कर रही कि नहीं करी। कुछ लोगों ने बोला कि कई पेट्रोलियम कंपनी टीसीएस के प्रोविजन नहीं करे, क्योंकि उन्होंने गुड्स लिखा है। गुड्स में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी गुड्स आता है, वो भी गुड्स है, और उसका कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन मुझे मिला नहीं। लिहाजा ये टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन पेट्रोलियम कंपनी या पेट्रोल पंप पे भी लग जाने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप भी 10 करोड़ से ज्यादा का माल तो खरीदते हैं। पेट्रोलियम कंपनी की टर्नओवर तो 1000 ऑफ करोड़ में होती है। तो लिहाजा ये पेट्रोलियम कंपनियों पे भी इस तरीके लगना चाहिए, क्योंकि कोई एग्जम्पशन मुझे मिला नहीं है। बाकी आप लोग इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। राइट। हाँ, तो अब हम
जो टैक्स डिडक्शन 194Q है, इस पे आ जाते हैं। जो प्रोविजंस इसके बारे में क्या है, टैक्स डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अ पर्सन। तो एक पर्सन से ये बात करता है। अब सवाल ये है, मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं, तो एक कंपनी है, वो एक कंपनी का मान लीजिए 10 लाख मान लीजिए 10 लाख रुपए का सामान महाराष्ट्र से आया, वही कंपनी का सामान मध्य प्रदेश से 20 लाख का आया, अलग जीएसटी नंबर के ऊपर। फिर मान लीजिए दिल्ली में भी वो कंपनी है, वहां से भी आया। तो आपको पर पर्सन देखना है, पर पर्सन। तो बायर और सेलर पर पर्सन चेक करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पर्सन, तो पर ब्रांच नहीं है, पर ट्रांजैक्शन नहीं है, और ये एग्रीगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर है। तो आपके पास जो इनवॉइस आ रहे हैं, बेशक अलग अलग जीएसटी नंबर पे अलग अलग ब्रांच से भी आ रहे हैं, तो टीडीएस काटते समय आपको पर पर्सन 50 लाख की लिमिट चेक होगी, चाहे वो बायर की हो या सेलर की हो। तो मल्टीपल ब्रांच से यदि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या आपकी कोई कंपनी है उसके 8-10 ब्रांचेस हैं और अलग अलग जगहों से यदि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हमें पर पर्सन चेक करना है। और जब हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत इनकम टैक्स में तो बहुत क्लैरिटी से लिखी हुई है। अदरवाइज जो है पर्सन की डेफिनेशन भी अलग अलग लॉ में अलग अलग पर्सन की डेफिनेशन है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन, जो भी है, लीगल पर्सन, जो भी है, बहुत सारे डेफिनेशन है। तो हमें पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब, क्योंकि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स लॉ में जो पर्सन की डेफिनेशन है उसको हमें ले लेना चाहिए। राइट, आगे आते हैं जरा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये डिटेल्स जो है, इसके अंदर जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 0.1% है। टीसीएस में भी रेट सेम है, रेट में तो कोई फर्क ही नहीं आया। अमाउंट ऑन विच टैक्स टू बी डिडक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। जो 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा उस पर चलेगा। टर्नओवर पीछे फाइनेंशियल की लेनी है, मतलब फाइनेंशियल 2021 की लेनी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 जुलाई आ गया, कई लोगों का ऑडिट नहीं हुआ है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यदि कई लोगों का ऑडिट नहीं हुआ और उनका टर्नओवर क्लैरिटी में नहीं है और वो 10 करोड़ के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि वो टीडीएस में कवर होंगे, टीसीएस में कवर होंगे, जैसे भी है। तो उनको टर्नओवर एटलीस्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि उनकी टर्नओवर क्या है, कैसे है, और टर्नओवर में ट्रेड डिस्काउंट इन सब का क्या एडजस्टमेंट है, वो सारी बात ध्यान में रख के करना चाहिए। और बाकी कोई चीज है नहीं इसके अंदर। एग्रीगेट ऑफ परचेजेस कवर होगा इसके अंदर, और इन जीएसटी माइनस करके होगा। बेस फिगर जब एग्रीगेट ऑफ परचेज निकालेंगे फ्रॉम अ पर्सन। अब मान लीजिए हम किसी से खरीदते हैं 40 लाख का, दूसरे से खरीदते हैं 30 लाख का, और किसी से 20 लाख का, तो हमें सारे पर्सन का जोड़ के नहीं देखना कि 50 लाख ऊपर कवर हो गया इन ए फाइनेंशियल ईयर। हमें पर पर्सन ट्रांजेक्शन चेक करना है। एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फ्रॉम अ पर्सन। तो ये भी क्लैरिटी आ गई। आगे चलते हैं जरा। एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2021 से है। स्पेसिफाइड बायर की मीनिंग इसमें लिखी हुई है। ये ध्यान रखना है कि जो हम ये सारा चीज ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर, दैट मस्ट बी ऑफ बिजनेस। तो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप ऐसी कंपनियों में कि टर्नओवर हो, वो टर्नओवर कोई बिजनेस की नहीं हो, कोई और चीज की हो, तो वो नहीं लेनी है, बिजनेस की टर्नओवर लेनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और however certain buyers are excluded from obligation of tax deduction and deposit as central government may by notification specify। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अपनी पावर रख रखी है, यदि उनको किसी को बाहर करना होगा तो वो इसमें से बाहर कर देंगे। अब इसमें से कैसे बाहर कर दिया, उसके कुछ एग्जांपल सब सर्कुलर में भी दिए हैं। जैसे कोई नॉन रेजिडेंट है या इस तरीके से पेट्रोल खरीदता है, सॉरी जो एयरलाइंस कंपनी है वो जो फ्यूल खरीदती है वहां एयरपोर्ट के ऊपर और उनका ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है, तो उनको इन्होंने टीडीएस टीसीएस से बाहर कर दिया है। इस तरीके के प्रोविजंस लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि 194Q तो रेजिडेंट पे लगता है, तो सेलर मस्ट बी रेजिडेंट। तो सेलर तो रेजिडेंट होगा। बायर के बारे में सेक्शन चुप है कि बायर क्या है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, उसके बारे में ये बात नहीं करता है, सेलर के बारे में बात करता है। तो ये समझने वाली बात है। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने एक्सप्लेन कर दिया, मेरा ख्याल इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू
बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो जस्ट हमारी कंपनी बनी ही है, हमने जस्ट इनकॉर्पोरेट किया है, मान लीजिए मई में या जून में ही कंपनी बनाया है, तो क्या 194Q के प्रोविजन हमारे ऊपर लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारी टर्नओवर तो पीछे की देखनी पड़ेगी। पीछे की टर्नओवर तो हमारी 10 करोड़ से नीचे है, क्योंकि हम तो कंपनी ही नहीं बनी है, तो पीछे का टर्नओवर हमारा जीरो ही है, तो पीछे की टर्नओवर हमारी है नहीं, तो लिहाजा हम बायर हैं और हमारी टर्नओवर पीछे कुछ भी नहीं थी, तो हम 194Q से बाहर हो गए। लेकिन 206C1H में कवर हो सकते हैं। जो सेलर है उसकी टर्नओवर यदि 10 करोड़ से ऊपर है और 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में सेलर हमारे से टीसीएस कलेक्ट करेगा। क्वेश्चन के आंसर हो गए। दूसरा क्वेश्चन ये है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर who has turnover gross receipts exceed 10 crore but total sale or gross receipts or turnover from business is less than 10 crore। नहीं लगेगा, ये भी क्लैरिटी आ गई, क्योंकि डेफिनेशंस में लिखी थी कि हमें टर्नओवर, सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स बिजनेस की चेक करनी है, अदर देन बिजनेस की नहीं करनी। रेट ऑफ टीडीएस 0.1% है। टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिच इज अर्लियर। तो काफी सेक्शंस हैं टीडीएस में जिसके अंदर ये लिखा है कि टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कुछ सेक्शंस में लिखा है टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिच इज अर्लियर। तो 7-8 सेक्शंस हैं जिसमें पेमेंट बेसिस पे टीडीएस है और बाकी सेक्शंस में पेमेंट और क्रेडिट व्हिच इज अर्लियर है, ऐसा करके लिखा हुआ है। यदि आपको वैसे बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मेरे वेबसाइट में भी जाके चेक कर लीजिएगा, वहां हमने लिस्ट रेड रेकनर में डाल दिया है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें ये पेमेंट और क्रेडिट पे कटता है व्हिच इज अर्लियर, और कौन कौन से सेक्शन है जिसमें पेमेंट बेसिस पे कटता है। जो है आपको मेरा ख्याल बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता है बुक में तो हमारे वेबसाइट में ppsing.org उसमें जा करके आप ले सकते हैं। बहुत मेरा ख्याल है मेंबर्स को उसमें इंफॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं उसको। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन, अदरवाइज भी कोई आर्टिकल ये सब होगा तो मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं जरा। अब एडवांसेस के बारे में हम बात करते हैं कि ट्रांजिशनल ट्रांजेक्शन्स हैं कि 1 जुलाई से जो ये टीडीएस का प्रोविजंस आया है उसमें पहले जुलाई से पहले एडवांस हो गया या जुलाई से पहले सेल हो गया, तो एक सेल पहले हो गया पेमेंट बाद में हुआ। किसी में हो सकता है कि पेमेंट पहले एडवांस चला गया सेल बाद में होगा, तो क्या ये 194Q में कवर होगा? आंसर नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से ये प्रोविजंस आया है, लिहाजा इसमें ये प्रोविजंस में यदि पेमेंट और सेल दोनों में से कोई भी एक पहले हो गया तो ये 194Q से बाहर हो जाएगा। इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम 194Q, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर। और ये होना भी चाहिए क्योंकि सेल वर्ड लिखा है और गुड्स का सेल है, तो लिहाजा हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी ध्यान रखने चाहिए कि कब सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। जनरली रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर होता है तो ये सेल माना जाता है। बाकी कुछ केसेज ऐसे भी है एक्सेप्शनल जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखे गए हैं, वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि सेल कब किया माना जाएगा। तो इस तरीके से ये चलेगा। पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब इनवॉइस बना दिए जाते हैं तो जो है और हैंडओवर कर दी जाती है गुड्स की, चाहे ट्रांसपोर्टर को कर दें, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्टर भी एज एजेंट काम करता है, तो आप चाहे तो प्रिंसिपल को दे दिया या प्रिंसिपल के एजेंट को दे दिया, तो वो भी एजेंट भी प्रिंसिपल के जैसा ही काम करता है। इफ यू हैव हैंडेड ओवर द गुड्स टू एजेंट ऑफ अ प्रिंसिपल देन इट शैल बी ट्रीटेड और डीम्ड एज गुड्स हैंडेड ओवर टू द प्रिंसिपल एज वेल। सो ट्रांसपोर्टर किसका है, ये सारे थोड़े मैं लॉ में अंदर नहीं जा रहा, वो आप कर लेंगे क्योंकि सब आप लोग को काफी चीज पता है, सब सीनियर मेंबर्स हैं, आप लोगों को काफी चीज जानकारी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस हमें ध्यान करके उसे हम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड सेल है तो सेल वर्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से चलेगा क्योंकि गुड्स की ही बात कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। और थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड, जो हमने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल पूरे साल की ली जाएगी, इस तरीके से किया जाएगा, ये provisions है। So calculation of sum for triggering the TDS under 194Q shall be computed from 1st April 2021 although the provision is applicable from 1st July 2021। तो इन्होंने बोला कि जो 50 लाख की लिमिट है उसके लिए तो आप 1 अप्रैल से कैलकुलेट करो जो है, लेकिन हम प्रोविजन 1 जुलाई से ये
लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है यदि यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है और क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप इन बिटवीन ही ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि क्लैरिटी आती रहेगी। जी, एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर लेंगे। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, जो भी है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ साथ क्लैरिटी चलती रहेगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, जो भी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, साथ में थोड़ी इंटरेक्टिव भी रहेगा। एक्चुअली क्या है, ये वेबिनार है, वेबिनार में क्या है, इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कुछ सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है चैट बॉक्स में भी इन्होंने कुछ सवाल भेजा है। ठीक है, चैट बॉक्स वाले तो इंड पे कर लेंगे, लेकिन अभी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम तो है नहीं, 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाएगा। मैं तो यही समझता हूँ। तो क्योंकि हम तो बहुत सारे, मेरे दिमाग में बहुत सारी बात है, आपके सवाल के जवाब भी मिलने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। वेदर टीडीएस ऑन जीएसटी शुड बी डिडक्टेड, आंसर नो है। पैरा 4.3.1 इन्होंने क्लियर कर दिया है। सर्विसेज के केस में जो है पहले, मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी, उससे पहले जो है बहुत सारा केस था। लोग टोटल अमाउंट पे इंक्लूडिंग वैट सब चीजों पे वो टीडीएस काटते रहते थे। कोर्ट ने बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि रेवेन्यू पे टैक्स है, यदि इनकम ही नहीं है तो टैक्स क्यों लगेगा। जब जब कोई वैट है या जीएसटी है, उसमें इनकम का एलिमेंट नहीं है, वो तो पैसा लेके जमा करना है जस्ट गवर्नमेंट को, तो उस पर टैक्स नहीं कटने चाहिए थे। बाद में इन्होंने सर्कुलर बना दिया सर्विस के रिगार्डिंग, तो पूरी क्लैरिटी दे दी इन्होंने। सर्कुलर नंबर 23/2017 है, जो 19 जुलाई 2017 को आई थी, जिसमें इन्होंने क्लैरिटी से रख दिया कि सर्विस के केस में अक्रॉस ब्रॉड कोई भी सेक्शंस है सर्विस के केस में, यदि उसमें जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटना है। पूरी क्लैरिटी है, पर अभी भी मार्केट में लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। जो है अभी भी ऐसे लोग हैं जो जीएसटी पे भी टीडीएस काटते रहते हैं, पता नहीं क्यों काटते हैं, मुझे समझ नहीं आया। इसी तरीके से, क्योंकि सर्विस के रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी सर्कुलर नंबर 23/2017 से, तो लिहाजा गुड्स के केस में भी उन्होंने कंसिस्टेंट अप्रोच रखा, और ये वेलकम है, बढ़िया अप्रोच रखा, सही अप्रोच है कि 194Q के टीडीएस में भी जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटना, स्पेसिफिक प्रोविजंस पे टीडीएस काटना है। इन्होंने आर्गुमेंट्स भी लिखा कि क्यों हम ये प्रोविजन लिख रहे हैं। एक तो इन्होंने बोला कि सर्विस में इस तरीके का प्रोविजन है कि बेसिक पे टैक्स कटता है, जीएसटी पे नहीं कटता है। दूसरा इन्होंने बोला कि जिस समय हम परचेज कर रहे हैं और जो पेमेंट ये सब का मैटर है, उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है कि इतना जीएसटी क्या है नहीं है, खासतौर से एडवांसेस देते हैं, तो उस समय यदि हम एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि टीडीएस टू बी डिडक्टेड at the time of payment or credit whichever is earlier at the time of payment, you may not be aware of the amount of GST, so on the at the time of making payment deduct the TDS on the amount of payments, और इस तरीके से कर लीजिए, वो ज्यादा है, सेंसिबल बात है। तो इन्होंने ऐसा प्रोविजंस किया। हालांकि जीएसटी लॉ में जो एडवांस लेता है वो रिसीट वाउचर्स और पेमेंट वाउचर बहुत सारे इंक्लूडिंग सारे जीएसटी फिगर डिटेल्स करके बनाना पड़ता है, पर इन्होंने सीबीडीटी ने स्टेट फॉरवर्ड प्रोविजंस ले लिया, सही है, वेलकम है, मेरे समझ में सही लिया इन्होंने कि जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। हाउ टू टैकल द टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट बट लेटर ऑन परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। तो आपने जब परचेज आया तो इनवॉइस आते ही आप क्रेडिट कर देते हैं और फिर आपने टीडीएस काट लिया, लेकिन बाद में वो परचेज रिटर्न हो गया, तो उसके बारे में ये सर्कुलर एक्सप्लेन कर दिया है पूरी क्लैरिटी से कि इन द केस ऑफ परचेज रिटर्न इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। जब ही आपको इनवॉइस आया, आपने पार्टी को क्रेडिट कर दिया अकाउंट में, जब ही क्रेडिट किया आपने टीडीएस काट लिया। देयरफॉर बिफोर परचेज रिटर्न हैपेंस द टैक्स मस्ट हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड अंडर 194Q ऑफ द एक्ट ऑन दैट परचेज। इफ दैट इज द केस एंड against this purchase return the money is refunded by the seller, then this tax deducted may be adjusted against the next purchases against the same seller। यदि उसके साथ कोई आपका और ट्रांजेक्शंस है तो आप उसमें एडजस्टमेंट इसको कर लीजिए। लेकिन बात यह है
कि आपने ये टीडीएस सरकार को भी जमा कर दिया है और सेल रिटर्न हो गई है, तो आपने उसको रिपोर्ट कर दिया होगा। वो 26A और सब जगहों पे डिटेल्स चली गई होगी। तो इस तरीके का उनको, क्योंकि एक बार टीडीएस आपने जमा कर दिया, उसके 26A में चला गया, तो या तो आप उसको, यदि पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, परचेज रिटर्न कंप्लीट हो गया है, तो आप उसका कोई क्रेडिट नोट करके, जैसे जीएसटी में क्रेडिट नोट बनता है उसके बेसिस पे, या तो आप उसका एडजस्टमेंट्स कर दीजिए जो है आगे में करके पीछे वाली का, क्योंकि पूरा ही वापस चला गया तो एक्चुअली क्रेडिट हुआ नहीं। सच बात यह है कि यदि हमने किसी से सामान खरीदा और उसका गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हमने वो क्रेडिट डेबिट करके जीरो ही कर दिया, तो एक्चुअली वो क्रेडिट हुआ नहीं। लिहाजा सेलर का कोई इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं कटना चाहिए। तो आप रिटर्न में एडजस्टमेंट्स कर दीजिए, सही कर दीजिए, या आगे में जो भी हो रहा है उसमें एडजस्टमेंट्स करके कर दीजिए। सो इन्होंने सर्कुलर में लिख दिया, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ परचेज रिटर्न इज, वो तो गुड्स एक गया और उसके जगह पे दूसरा कोई गुड्स आ गया, तो एक्चुअली कोई रिटर्न है नहीं, सामान रिप्लेस हो गया जस्ट, उस केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने राइटली टीडीएस काट रखा है। आगे बढ़ते हैं जरा। नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा, ये इन्होंने बता दिया कि यदि नॉन रेजिडेंट से ट्रांजेक्शन्स है और उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो लिहाजा क्योंकि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो उसकी कोई पीई नहीं होने के वजह से इंडिया में उसकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, तो टीडीएस प्रोविजन टैक्सेबल ही नहीं होगी, तो टीडीएस काटने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा उसको टीडीएस के सेक्शन 194Q से बाहर कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं जरा। वेदर टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, इसके बारे में भी सर्कुलर बहुत क्लैरिफाई करता है। यस, पेमेंट और क्रेडिट विजिबल अर्लियर है, तो लिहाजा आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसमें भी कुछ नया बात नहीं है। 194Q कहाँ नहीं लगता है, तो इसके बारे में ये क्लैरिटी है कि कहाँ नहीं लगता है। पहला कि ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा, क्योंकि लॉ में आ गया, हमने वैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया था, मैं लॉ में आ गया कि लॉ में कहाँ लिखा है, सेक्शन 194Q सबसेक्शन 5 हैज अ डिटेल्स प्रोविजन वेयर व्हेन टीडीएस प्रोविजन 194Q शैल नॉट बी एप्लीकेबल। नंबर 1 इज टैक्स डिडक्टेड अंडर एनी अदर सेक्शन। यदि कोई और सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो 194Q, क्योंकि ये जनरल सा प्रोविजन है, सेक्शन 206C1H और 194Q जनरल प्रोविजन है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन जैसे 194O है कार सेल के केस में, 194 कोई और प्रोविजंस है, तो वहां यदि टीडीएस या टीसीएस में कवर है तो यहाँ नहीं कवर होगा। सो जनरल प्रोविजंस है ये, तो एक तो वहां बाहर हो गया स्पेसिफिकली यदि कवर्ड है, और 206C1H को छोड़ के बाकी में यदि टीसीएस में कोई प्रोविजन लगता है तो 194Q नहीं लगेगा। 194Q और 206C1H में एक आपको सिलेक्ट करना है, और दोनों के कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तो 194Q में जाना है, 206C1H में नहीं जाना है। तो ये आपको पूरी क्लैरिटी दे रही है, ये प्रोविजंस इस तरीके से है। यदि 194Q में और 206C में कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए, वो सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपके पास है। एक एग्जम्पशंस वाले का कर देते हैं कि एग्जेम्प्ट के केस में क्या हो। एग्जेम्प्ट मींस जो मान लीजिए हम परचेस कर रहे हैं और जो सेल कर रहा है उसका एग्जेम्प्ट है, सेलर का इनकम एग्जेम्प्ट है, तो सेलर का इनकम क्योंकि एग्जेम्प्ट है किसी भी वजह से, चाहे इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है या कोई एग्जम्पशन है उनको अनकंडीशनल, या कोई और लॉ की वजह से भी कोई एग्जम्पशन है, तो क्योंकि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस या टीसीएस नहीं होना चाहिए था उस ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो ये सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन हाँ, आप टीडीएस नहीं काट रहे तो आपके ऊपर ओनस है कि आप उसका कुछ ऐसा करें कि आपको क्लैरिटी रहे और आपके पास प्रूफ भी रहे कि इस वजह से आप टीडीएस नहीं काट रहे। आपको कोई डिक्लेरेशन भी साथ में ले लेना चाहिए सेफर साइड में, क्योंकि यहाँ लोअर डिडक्शन या नील डिडक्शन का सेक्शन 197 जैसा कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है। लिहाजा अब वो किस तरीके के एग्जम्पशन से कैसे है, आपको डिक्लेरेशन भी ले लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे इन्होंने कोई सर्कुलर में लिखा है कि एग्जम्प्ट है तो नहीं रहेगा, वो एग्जम्पशंस आपको थॉरोली चेक करनी पड़ेगी। और एग्जम्पशंस की इंटरप्रिटेशन जो
टाटा के केस हैं या और भी लैंडमार्क केसेस हैं, चाहे वो कस्टम के हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, एग्जम्पशन मस्ट बी रीड स्ट्रिक्टली, इट कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड लिबरली। तो ऐसा नहीं है कि एग्जम्पशंस के प्रोविजंस को आप लिबरली पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जम्पशंस गवर्नमेंट देती है, तो एग्जम्पशंस, रिबेट और रिलीफ, जो भी डिडक्शंस, ये स्ट्रिक्टली पढ़े जाते हैं, इनको एकदम ध्यान से माइन्यूटली पढ़े जाते हैं, अनलेस ऑल द कंडीशन बीइंग सेटिस्फाइड बाय द एसएससी और टैक्स पेयर, देयर इट विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एग्जम्पशन। जब लेवी प्रोविजंस होते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन जो है बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर को मिल जाता है, लेकिन एग्जम्पशंस में कोई डाउट है, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता है, जो एग्जम्पशन दे रहा है आपको नहीं मिलेगा, टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है हमने साथ के साथ ये बता दिया। तो मेरा ख्याल है ये चार्ट तो आप लोगों को डिस्कशन से पता चल गया कि 194 क्यू में बायर टीडीएस काटता है, 2061H में सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है। टर्नओवर की लिमिट बायर की देखी जाएगी 194 क्यू में 10 करोड़ और 2061H में सेलर की देखी जाएगी। रेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस दोनों एक जैसे ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, जो है कोई टाइपिंग एरर थी। कुछ बायर या सेलर को गवर्नमेंट एग्जम्पशंस दे सकती है, जो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दे रखा है, टीसीएस के लिए भी दे रखा है और टीडीएस में भी वो एग्जम्पशंस बना सकती है, इन्होंने प्रोविजंस बना रखा है। एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स 194 क्यू एक्सेप्ट expressly covered in 206C except 1H। तो 194 क्यू इस तरीके से चलता है। मेरा ख्याल है ये हमने क्लियर कर दिया। 194 क्यू में बेस अमाउंट पे टीडीएस काटना है, 206C में इंक्लूडिंग जीएसटी है, इस तरीके से चलेगा। और ये कंक्लूजन मेरा ख्याल है। अभी तक यदि कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है हमने आपके 206C और 194 क्यू में कोई क्वेश्चंस है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस है तो आप कर लीजिए, फिर हम आगे कोई और सेक्शंस में फिर चलेंगे। इसमें कोई सवाल है 206C और 194 क्यू, 206C1H और 194 इसमें कोई क्वेश्चन? जी बताएं। हेलो जी बताएं सर, अगर हमने कोई 100 डिडक्शन किया हुआ है तो उस केस में से क्या पेनल्टी लगेगी हमारे ऊपर? अच्छा, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि शॉर्ट डिडक्शन आपने टैक्स कम कर, हाँ, तो ऐसा होता है ना, एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाते हैं। आप एसएससी की डेफिनेशन यदि आप जाके पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 31 में है, उसमें 3 तरीके के एसएससी होते हैं। एक एसएससी जिसे एक एसएससी होता है जो नॉर्मल टाइप का एसएससी है, टैक्स जिसे लिया जाता है। दूसरा एक डिम्ड एसएससी होता है। डिम्ड एसएससी के वो केसेस है जिसमें कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव टाइप के होते हैं। और तीसरी एसएससी इन डिफॉल्ट होता है, जो एसएससी इन डिफॉल्ट है कि आप टैक्स यदि नहीं काटा, कम काटा, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाते हैं, आपसे टैक्स की रिकवरी होगी। एक उसमें प्रोविजंस और होता है कि यदि पीछे वाले ने टैक्स जमा कर दिया और आप सर्टिफिकेट, सीए का सर्टिफिकेट और वो कंडीशंस है सेटिस्फाई कर देते हैं, उसने रिटर्न फाइल किया हो, तो आप एसएससी उसमें से बाहर हो जाते। इंटरेस्ट की लायबिलिटी लेकिन आपकी रह जाती है। लेकिन यदि उसने रिटर्न नहीं फाइल किया और कुछ नहीं हुआ इस तरीके से, तो आप एक तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी है कि आपसे टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, पेनल्टी भी लेंगे और प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकते हैं। ओके सर, राइट। तो मेरा ख्याल है, हाँ सर ये क्वेश्चन ये पूछना था कि पूछे ना, जो 194 क्यू है वो सेक्शन एप्लीकेबल होना चाहिए था 1 जुलाई से, पर अगर 206 इसमें अगर सेलर ही हमारा टैक्स काटता चला जाए और हमने एज ए बायर जो हमारे पे लायबिलिटी थी टैक्स काटने की, और ये ओवरहेड कर जाता है 206 को 194 क्यू, और वो हमने मान लीजिए इग्नोरेंस में वो नहीं कर पाए और वही हमारा कंटिन्यूस टैक्स काटता चला गया, तो उस केस में हमारा ये डिफॉल्ट रहेगा, उसमें क्या होगा, क्या इसमें स्थिति बनेगी हमारी? हाँ ऐसा है, यदि लॉ को आप ध्यान से देखिए, एक बात तो है कि लॉ में एक्सक्यूज का तो कुछ होता नहीं है, सच बात है। और इनकम टैक्स में तो एकदम नहीं होता। इनकम टैक्स लॉ तो बड़ा खतरनाक सा लॉ है। इनकम टैक्स और जीएसटी में तो एक्सक्यूज का कुछ सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो हाँ, पेनल्टी के लिए ये हो सकता है कि पेनल्टी तो नहीं लगेगी, पेनल्टी कट जाएगी। पहली बात तो ये, पेनल्टी तो आपकी कट जाएगी। हाँ ये है कि आप ये ले सकते हैं, ये प्ली ले सकते हैं। जस्ट हमने बात किया कि जिसका टीडीएस आपको काटना है उसने यदि रिटर्न यदि फाइल कर रहा है
और सीए का सर्टिफिकेट आप लगा देते हैं और वो कंप्लायंस कर लेते हैं जो प्रोविजंस में है, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट की लायबिलिटी रह सकती है और कुछ नहीं रहेगी। और मेरे समझ में इसमें गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। तो एक नो कंपनसेशन थ्योरी होती है कि इफ गवर्नमेंट हैज नो लॉस एट ऑल देन वन शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, कि दोबारा टैक्स ना लिया जाए क्योंकि उस ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। एनी हाउ यदि हम टीडीएस काट के जमा भी करते तो वो क्लेम ले लेता पार्टी, तो सरकार को प्रॉब्लम क्या है? वो तो हमारा से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि इनकम तो तब होती है जब हम कोई सामान बेचते हैं, परचेज करने में इनकम तो होती नहीं है। सरकार ने ये जो सेक्शंस बनाए, इनको थोड़ी जो इनके ऑफिसर्स थे उनको बुद्धि तेरी देर में आई, इनको 194Q को और अभी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम एक पेंशनर हैं, हमने इनकम कमाया, वो पैसा हमारे बैंक में जमा है, हम घर बना रहे हैं, हमने किसी से सामान खरीद लिया, 50 लाख से ज्यादा खरीद लिया। अब ऐसा है 50 लाख से ज्यादा खरीद लिया, हमारी 10 करोड़, हमें कोई टर्नओवर नहीं है, जीरो है, बेचने वाले का टर्नओवर तो बहुत है, वो हमारे से टीसीएस मांगने लगेगा सुबह से शाम तक, तो फिर हमारी इनकम तो एलिमेंट है ही नहीं, किसी भी सूरत में इनकम एलिमेंट नहीं है। तो इनकम एलिमेंट है नहीं तो टैक्स किस बात का? टैक्स तो इस बात पे होना चाहिए कि हमारी इनकम कोई हो। तो लिहाजा इनकम सेल करने पे होती है, जो भी फंडामेंटल्स है वो यही है कि सेल करते हैं तो इनकम होती है। तो ये टीडीएस के प्रोविजंस तो सेल पे तो समझ आता है कि कोई हमें सेल कर रहा है तो उसकी कोई इनकम हो रही है तो हमें टीडीएस काटना चाहिए, लेकिन परचेज करते समय टीसीएस हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने लॉ में ये लिखा होना चाहिए कि दोनों बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। यदि आप लॉ की ड्राफ्टिंग के एंगल से बात करें देन बायर एंड सेलर बोथ मस्ट बी अ बिजनेस एंटिटी, पर ऐसा लिखा नहीं है लॉ में। मैं निगेटिव बात नहीं बता रहा अभी, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, जो लॉ के अंदर जितनी क्लैरिटी दी गई है उतनी बता दिया। एनालिसिस करने से तो ये 206(1)(h प्रोविजंस में प्रॉब्लम है, लेकिन 194Q वेलकम है, बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो सेलर जो परचेजर है वो टीडीएस काट रहा है, ये सही मूव है, बढ़िया मूव है, क्योंकि सेल करने पे इनकम होती है, कुछ ना कुछ इनकम की एलिमेंट होगी। एक जो इस तरीके से ये चलेगा। हाँ, आपका सवाल मैं बीच में मिस कर गया, आप दोबारा एक बार सवाल पूछिए, मैं कुछ मिस कर गया सवाल जो है, दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर मेरा कहना यही था कि मेरे को 194Q में टीसीए और टीडीएस काटना था। हाँ, मेरे पे एप्लीकेबल था। हाँ, और उससे पहले जो सेलर था वो 206 में मेरा टीसीएस काट रहा हाँ, था। आपको जानकारी नहीं थी। और एक जुलाई पे जो हाँ, मेरे को काटना चाहिए था, वो मान लीजिए उसने, जो मेरा क्लाइंट है, उसने हमसे नहीं बात करी, नहीं पूछा, हाँ, और वो कंटिन्यूअसली वो सेलर ही काटता चला जा रहा है। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। हाँ। अब मैं बताता हूँ, ऐसा है फर्स्ट जो अभी, क्योंकि ज्यादा दिन हुए नहीं, अभी 4 ही तारीख हुए हैं, तो मेरे समझ में देखिए, जब आप पेमेंट करेंगे तो टीसीएस कलेक्ट होता है। पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टीसीएस इज द टैक्स कलेक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली, जो 206(1)(h बात करता है। तो वो तो जस्ट इनवॉइस दिया होगा। लोग क्या करते हैं मार्केट में, कई लोगों को देखा वो जीएसटी जैसे उसी पे टीसीएस इनवॉइस पे लिख देता है। दिस रॉन्ग प्रैक्टिस, नॉट एज पर लॉ, ये सही नहीं है। पेमेंट होगा तो टीसीएस कलेक्ट होगा, पेमेंट नहीं होगा तो टीसीएस का कोई प्रोविजन नहीं है। टीडीएस में है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिच वेरी अर्लियर, तो क्योंकि हमारे पास इनवॉइस आया, हमने पार्टी को क्रेडिट किया तो टीडीएस अट्रैक्ट हो गया। पर टीसीएस प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होगा जब हम पेमेंट करेंगे। यदि हमने पेमेंट नहीं किया है, जब पेमेंट करेंगे तब टीसीएस अट्रैक्ट होगा। 3 साल के बाद पेमेंट करेंगे तो 3 साल के बाद टीसीएस अट्रैक्ट होगा, आज के डेट में अट्रैक्ट नहीं होगा। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और था जी, कि जैसे कि हमारे फिरोजाबाद में ये ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, तो जो गेल गैस है वो 15 दिन के ऊपर बिल रेज करता है, ठीक है, फोर्टनाइटली। हाँ, ठीक है, तो जो उसने 16 जून से लेकर और 30 जून का जो बिल है, हाँ, वो रेज करा सपोज जुलाई में 2-3 तारीख में, 4 तारीख समझ आ गया, ठीक है। तो उस केस में ये किस सेक्शन के अंदर में जाएगा? ये ऐसा है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, जी, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर, तो आप टीडीएस काटेंगे। हम काटेंगे TDS। हाँ, आप टीडीएस काटेंगे। मतलब उसने जो हमको गैस दिया था वो 30 जून तक दिया था, लेकिन क्योंकि बिल उसने जुलाई में रेज किया, इसलिए वो लायबिलिटी 194 में आएगा। हाँ, क्योंकि सेल ऐसा है ना,
क्योंकि इनवॉइस वो बना रहा है जी, सब चीजें वो अप्रैल जुलाई में बना रहा है, जुलाई में कर रहा है। तो अब आपको क्योंकि क्रेडिट अब आप करेंगे, आपने पेमेंट भी नहीं करी और क्रेडिट भी नहीं दिया, तो इसका मतलब है क्रेडिट और पेमेंट विजिबल अर्लियर दोनों ही नहीं हुआ, तो 1 जुलाई से टीडीएस 194 क्यू आ गया, लिहाजा आप टीडीएस काटेंगे उसका और बैलेंस पैसा उसको देंगे, टीसीएस का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक सर जो परचेज रिटर्न वाली बात आपने बताई थी। हाँ शरद जी आ गए मुझे लगता है। हाँ जी हाँ, सर जी। हाँ, जी बेटा तो प्लीज। सर वो हमने तो टीडीएस भी मतलब बायर ने जो है टीडीएस भी काट लिया और हाँ, जमा भी करा दिया। हाँ, जमा करा दिया तो उसके बाद में उसने रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा गुड्स वापस कर दिया। हाँ कर दे, हाँ कर दे, कर ही देगा। तो हाँ हाँ, अब पेमेंट जो है वो उसे अब करना ही नहीं है उसका, नहीं करना। हाँ लेकिन वो टीडीएस के रूप में तो जमा कर चुका। हाँ कर दिया। तो हाँ अब तो भले ही हम आपने नहीं अब सवाल जी, ये है, क्या आपने भी टीडीएस जमा कर दिया या खाली काटा था, अभी जमा नहीं किया था? नहीं टीडीएस काट के हम जमा भी कर चुके, मतलब बायर जमा भी कर चुका टीडीएस, अच्छा और ठीक है, मान लिया। उसकी रिटर्न हाँ भी फाइल कर चुका। हाँ ठीक है, तो वो तो उसके उसके क्रेडिट में चला गया। चला गया, तो चला गया। अब तो केवल एक ही रास्ता बचेगा कि उससे पैसे कहे कि भाई ये हमारा पैसा जो है वापस करो। हाँ तो नहीं पैसा ऐसा ना, आपने टीडीएस काट करके जमा कर दिया, सरकार के खाते में चला गया, आपने रिटर्न जनरेट करके सर्टिफिकेट दे दिया, अब वो अपना क्रेडिट लेता रहेगा, बाकी के पैसे आप उसको, जो आपने पैसा उसको एडवांस दिया था, नहीं हमने केवल अब पैसा खाली गुड्स का बिल नहीं खाली, दिया, अच्छा केवल पैसा नहीं, टीडीएस का टीडीएस चला गया एक तरीके से। सरकार को टीडीएस जमा कर दिया था, तो वो टीडीएस का पैसा आप उस पार्टी से मांगना चाहते हैं। देखिए पार्टी से यदि एग्रीमेंट में लिखा ही होगा, ऑब्वियसली लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप पार्टी से ले लीजिए, नहीं तो आप टीडीएस के स्टेटमेंट रिवाइज कर दीजिए, तो उतना टीडीएस आपके खाते में बैलेंस रह जाएगा। अनकंज्यूम चलान में कोई और टीडीएस है तो उसमें एडजस्ट कर लीजिए, आप देख लीजिए, या कोई और ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होता है। तो अगर रिटर्न से पहले तो हम कर पाएंगे, रिटर्न के बाद में नहीं कर पाएंगे। हाँ रिटर्न के बाद भी हो जाते, रिटर्न तो करेक्शन हो जाती है ना जी, वो करेक्ट रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं क्या सर हाँ इसके इसमें? हाँ, रिवाइज तो रिवाइज नहीं, रिटर्न कर ले, नहीं हाँ टीडीएस में रिवाइज नहीं होते, करेक्शन होती है। हाँ करेक्शन सर, वही हाँ correction है सर। ये हाँ थोड़ी वर्ड जो है, पर हम हाँ। लोग लिबरली बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज्यादा लॉ में नहीं है, पर लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इन सब बातों का, प्रिजम्पशन और एजम्पशन, देखिए हर वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है वहां, तो हर वर्ड में बड़ी सारी बात होती है। अभी जैसे हमने टिम्बर वर्सेज ट्री का बात किया था, हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा जी। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ और कोई क्वेश्चन है? हमने वो आप करेक्शन कर लीजिए, हालांकि इन्होंने सर्कुलर में नहीं लिखा, सर्कुलर में तो लिखेंगे नहीं ना, वो सर उन्होंने एक छोटी सर्कुलर सी में लिखा। क्वेरी है सर। जी बोलिए ना। सर सेक्शन 194 क्यू सेक्शन 206C1H, हाँ सर इसमें 194 क्यू प्रिवेल क्यों करेगा? टीसीएस का प्रोजेक्ट प्रिवेल क्यों नहीं कर रहा है नहीं जब ट्रांजेक्शन में दोनों एंट्री लग रही है? नहीं हाँ हाँ दोबारा बोलिए। सर इन दो सेक्शन जब ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल हो रहे हैं तो सब 194 क्यू प्रिवेल क्यों करेगा? 206C1H क्यों नहीं प्रिवेल करेगा? नहीं ऐसा है ना, इनका एक क्योंकि 1 जुलाई से इनका ट्रांजेक्शन 194 क्यू में कवर हो गया, जब ही 194 क्यू में कवर होगा 206C1H से बाहर हो जाएगा। तो सर ऐसा क्यों? इनके लॉ में लिखा है, ये तो लॉ में लिखा है, ऐसा क्यों? लॉ में लिखा, अभी जस्ट हमने सेक्शन पढ़ाया था आपको, ये तो लॉ में लिखा है, ठीक है, ओके ये लॉ में लिखा है कि यदि 194 क्यू अट्रैक्ट होगा तो 206C1H से बाहर हो जाएगा। ये लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में या कोई भी इनकम टैक्स लॉ में जो है ऐसी ऑप्शन नहीं दी जा सकती है कि 206C1H, ऐसा ना, लॉ तो इम्प्लीमेंट होना बहुत भारी पड़ेगा, तो लॉ में ऑप्शन नहीं होते, लॉ में तो डायरेक्शन होती है, ऑर्डर होती है ओके सर, कि ये मैंने पढ़ा नहीं था अप्लाई उसको, करना है, जो है लॉ, मैंने उसको पढ़ा, कोई मैंने नहीं, लॉ लॉ की इज प्रोविजन कमांड पढ़ी ऑफ, नहीं थी। ओके ओके, अच्छा Thank कोई you, नहीं, ये क्लैरिटी आ गई। हाँ ओके थैंक यू। हाँ और कोई सर- क्वेश्चन है कुछ? सर ये जी, पहले से जी। जो लिकर डीलर थे वो भी सर टीसीएस काटते थे बिल के नीचे, तो अब हैं? भी सब में बिल के नीचे ही लिखते हैं 0.0%, पहले लिकर वाले अच्छा लिखते थे, हाँ पहले ऐसा, सबको ही हाँ लिखते थे। हाँ अब वो ये बाकी हाँ वो भी लिखते हैं जो अब पिछले साल में बिलों में नीचे लिखते हैं, तो हाँ, क्या ये गलत है सर? अच्छा बिल में आप लिख दीजिए, वो तो आप कॉन्ट्रैक्ट के वजह से लिख रहे हैं, आप ना अपने इनवॉइस को कॉन्ट्रैक्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ हमें ये कलेक्ट करना है, लेकिन कलेक्ट तब होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट्स, जब पैसा मिलेगा तब होगा, पैसा मिलेगा तब टीसीएस कलेक्ट होंगे, टीसीएस 206C1H में पैसा मिलने से लिंक है, पैसा कंसिडरेशन रिसीव होगा तो टीसीएस कलेक्ट करना है, पैसा नहीं मिलेगा तो टीसीएस का क्वेश्चन ही नहीं है।
राइट। ओके सर। हाँ क्लियर हुआ है ये। हाँ लॉ के वर्डिंग्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जी। सर एक चीज और पूछना था कि जी। सपोज जो मेरा बिल है उस बिल से मेरे को अगर जो बायर है वो पार्ट पेमेंट कर करके दे रहा है हाँ सपोज, तो उस केस में मैं उसको पहले जो टैक्स का जो है मेरा जो मैं उससे टीडीएस काट रहा हूँ हाँ वो वाला उसको मैं मानूं या उसको टोटल में लेकर और उसमें से कितना उसमें रेशियो प्रोपोर्शनेट काटता जाऊंगा टीडीएस? दोबारा बोलिए मेरा आपका कहना है आपका टीसीएस का क्वेश्चन है, टीडीएस का? टीसीएस का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन टीसीएस का है? नहीं 194 क्यू में, अच्छा 194 का, हाँ हाँ उसके अंदर मैं जो है अगर किसी को वो माल भेज रहा हूँ हाँ, और ठीक है। 50 लाख से ऊपर का उसको भेजा हुआ है माल, अब वो है। मेरे को जो पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर रहा है, वो एक ठीक साथ है। उसने किसी बिल टू बिल नहीं कर रहा अगर, हाँ तो उस केस में जो अमाउंट मेरे पास आएगा हाँ उसमें मैं प्रोपोर्शनेट उतना जो 0.1% है उसका उसको मैं हाँ। टीडीएस समझ के पेमेंट करूं या टोटल पहले टीडीएस जितना मेरा उसका ड्यू था उतने टाइम तक का वो पूरा जमा काट के करूंगा? मैं जी। समझाता हूँ। देखिए ऐसा है, आप परचेज करने वाले हैं और आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, आप परचेजर हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप सेलर हैं परचेजर हैं? नहीं मैं सेलर हूँ, मेरे को जो अच्छा बायर, आपके, हाँ हाँ तो ऐसा यदि आप सेलर हैं जी। तो आप 2060 1H में तो आ सकते हैं, 194 क्यू में नहीं आएंगे। 194 क्यू में तो परचेजर आता है। हाँ तो नहीं तो तो हाँ हाँ तो अगर हम 206 में जा रहे हैं तब क्या हाँ स्थिति में? हाँ अच्छा हाँ 2060 1H में यदि आप गए तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो आप 50 पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख से ऊपर हो गई कि नहीं हो गई। मैं मानता हूं कि आपके 50 लाख से ऊपर हो गई, तो 50 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट आने लगेगा उसमें आपको टीसीएस 0.1% लेना पड़ेगा। वो जो भी पैसा आएगा उसमें आप ये मान के चलिए कि उसमें 0.1 टीसीएस भी इंक्लूड है, ऐसा मान करके आप आगे करते रहिए, बैकवर्ड कैलकुलेट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। राइट, ओके, थैंक यू, वेलकम जी। प्लीज, और एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है जी? कोई क्वेश्चन और भी है? यस नो बोल दीजिए। अच्छा, तो अब कौन सा सेक्शन आप लोग पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो पूरा पुलिंदा है, आप जो पढ़ना चाहेंगे वही हम पढ़ाएंगे। रिटर्न वाला बताएं कि रिटर्न नहीं फाइल किया, डिफॉल्ट किया, वो बताएं? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है, तो रिटर्न नहीं फाइल किया उसका टीसीएस में भी प्रोविजन है और टीडीएस में भी प्रोविजन है। वो नया प्रोविजन से आया, वो मैं बताता हूँ आपको उसका क्या बीमारी है। आइए एक सेकंड। हाँ अब देखिए इन्होंने क्या प्रोविजंस किया है। हाँ आइए, सेक्शन 206 ए बी एक नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये सेक्शंस में इन्होंने क्या किया कि बोला कि हायर रेट ऑफ टीडीएस लगेगा। अब देखिए पहले प्रोविजन आया पैन नहीं देते हैं, पैन नहीं देंगे तो हायर टीडीएस 206 ए लगेगा। एक सेक्शन आया कि पैन नहीं देने से हायर टीडीएस 20% तक चला गया। अब इन्होंने एक नया सेक्शन बनाया कि चलो वो पैन तो दे दी दिया, पैन दे दिया तो 20% से बच गया, लेकिन आप टैक्स कॉन्ट्रैक्टर में 194 में 1% काट रहे हो, रिटर्न ही नहीं फाइल करता। आप उसका कोई 2% प्लांट मशीनरी का रेंट का टीडीएस काटते हो, रिटर्न ही नहीं फाइल करता। तो बाकी के टैक्स गवर्नमेंट लेगी कैसे जब वो रिटर्न नहीं फाइल करता? तो इनको नोटिस भेजते, फिर वो रिटर्न नहीं फाइल करता। 142(1) का नोटिस भेजे तो रिटर्न नहीं फाइल करता, फिर ये 147 148 करते रिटर्न नहीं फाइल करता। बैंक खाते में जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, खाते अटैच करते हैं तो बैंक में पैसे नहीं है, इधर उधर हजम कर जाता है। उस आदमी को क्या करे, कैसे करे? सबको जेल में तो ठूस नहीं सकते कि हाँ सबकी प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दो। प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं तो कोर्ट में काफी समय लग जाता है जो है, तो फिर करें क्या ऐसे लोगों का जो रिटर्न डिफॉल्टर है? तो इन्होंने क्या किया कि एक बोला कि जो डिडक्टर है उसी को दे देते हैं, सबसे आसान है डिडक्टर को पकड़ना, 10 नंबर ले रखा है तो वो हायर रेट ऑफ टीडीएस काटेगा। तो यदि वो पैन नहीं दिया तो 20% काटते थे, अब वो रिटर्न नहीं फाइल किया, पैन तो दे दिया आपको पर रिटर्न नहीं फाइल करता, रिटर्न नहीं फाइल करता, उसका भी डबल रेट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, पर इन्होंने कुछ एक्सक्लूजन दे दी। वो कौन कौन से एक्सक्लूजन है ये समझिए। इस पे ये प्रोविजंस नहीं लगता, सैलरी में नहीं लगेगा, 192A में नहीं लगेगा, लॉटरी
ये सब सेक्शंस ऐसे हैं जो टैक्स रेट लॉ में लिखा है, फाइनेंस एक्ट में लिखा है, और या जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है वो रेट चलता है। तो ये सब 194 भी लॉटरी के क्रॉस होल पजल के हैं, या फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योराइजेशन ट्रस्ट, जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट भी उतना ही है जितना टीडीएस का रेट है। 194 ए है कैश विड्रॉल बैंक से, वो प्रोविजंस अलग से चलता है। तो लिहाजा इन्होंने बोला कि ये सारे प्रोविजंस में जो ये सेक्शंस, जो नया सेक्शंस आया है कि रिटर्न का डिफॉल्टर है तो वो हाई रेट का टीडीएस इसमें नहीं लगेगा। तो एक बात तो एक्सक्लूजन की लिस्ट हमने दे दी, इसमें तो बाहर हो गया, इसमें तो ये प्रोविजंस ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जरा कि ये कैसे सेक्शन ऑपरेट हो रहा है। ये सेक्शंस भी बाय चांस 1 जुलाई 2021 से ही लग रहा है। अब पहला सवाल है कि कैसे लोगों पे ये किस तरीके से लग रहा है। सो पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन वो है जो पीछे 2 साल के रिटर्न नहीं फाइल किया। बोथ, ये रेड वाला पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोथ, पीछे 2 साल का रिटर्न उसने फाइल नहीं किया। कब तक नहीं किया? रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट तक नहीं किया, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, उसका दूसरी चीज भी चेक करनी है कि उसका जो टीडीएस एंड टीसीएस बोथ अलग अलग लोगों ने 50,000 से ज्यादा पीछे 2 सालों में काट रखा है या उसे कलेक्ट कर रखा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोनों चीज चेक करनी है। एक, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसका टीडीएस आपको काटना है उसका, या जिसे टीसीएस कलेक्ट करना है, दोनों आइडेंटिकल प्रोविजंस है। ऐसा ही सेक्शन टीसीएस में भी है, मैं दोनों इकट्ठा ही कर देता हूं। यदि आप टीडीएस काटने गए किसी का, तो आपको पूछना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या ये 192 ए या 194 ए या एलबीसी ये सब सेक्शंस के टीडीएस है। तो आंसर है नहीं, इनके सेक्शंस नहीं है। मतलब प्रोफेशनल और कमीशन ब्रोकरेज बाकी सबका टीडीएस है, बाकी सेक्शंस में जो कवर होते हैं। तो पहला सवाल ये है, जिसको पैसा आप दे रहे हो, जिससे आप काम करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या उसने पीछे 2 साल का रिटर्न फाइल किया है? तो बोला नहीं फाइल किया, 2 साल का रिटर्न नहीं फाइल किया। तो दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा, क्या आपने टीडीएस और टीसीएस, उसका आपका ही नहीं पूरा, उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा है पीछे 2 सालों में, इन इच ईयर, ये रेड वाला पढ़ लीजिए, इच ईयर है, इच प्रीवियस ईयर। तो पीछे 2 सालों में क्या उसका टीडीएस और टीसीएस कई लोगों ने मिला करके, ये एक पर्सन टू पर्सन नहीं है, टोटल क्या 50,000 से ज्यादा है? यदि हाँ, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो अब उसका टीडीएस हाई रेट पे लगेगा, जो टैक्स रेट है उसका ट्वाइस लगेगा। और पैन नहीं देगा तो 206 ए के प्रोविजंस और अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो सेक्शन 206 ए बी और 206 ए इन दोनों में से जो ज्यादा रेट होगा, ऑब्वियसली 20% वाला होगा, तो 20% वाला टैक्स लग जाएगा। मेरा ख्याल है ये और कब नहीं लगेगा, जो कोई नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ऑब्वियसली उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा नहीं, बिजनेस इनकम, लिहाजा वो इस टीडीएस प्रोविजंस में, इसमें जो 206 ए भी है, ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है। वैसे भी नॉन रेजिडेंट है तो 195 सेक्शंस में वो चला जाता है, तो यहाँ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। लिहाजा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो इसके अंदर होगा, नहीं होगा, वो 195 में चला जाएगा। तो 2 चीज चेक करनी है, एक कि जिसको आप पे कर रहे हैं, जिससे कोई काम करा रहे हैं, जिसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका टीडीएस काटना है, कोई भी सेक्शन में टीडीएस काटना हो, जो 3-4 सेक्शन से उसको माइनस करके, यदि 2 साल में वो रिटर्न डिफॉल्टर है और उसका टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन 50,000 से ज्यादा है पीछे 2 सालों में, हर साल में ये चेक करना है, तो फिर वो इस सेक्शंस में आ जाएगा और उसका ज्यादा हाई रेट का टीडीएस काटना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इन्होंने जो सेक्शन लिखा वो रिटर्न डिफॉल्ट सेक्शन 139(1) लिखा, सेक्शन 139(1) तो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट से रिलेटेड प्रोविजंस होता है, तो लिहाजा बी लेटेड रिटर्न ये सब इसके अंदर, या 142(1) में रिटर्न या 148 में रिटर्न गया है, वो रिटर्न इसके अंदर कवरेज नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो सर्कुलर बनाया है उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया। सर्कुलर में बोला कि जो भी डिडक्टर है वो डिडक्ट करते, किसी जिस क्वार्टर में उसको डिडक्ट करना है, वो कंप्लायंस पोर्टल में जाकर के चेक करेगा कि वो रिटर्न डिफॉल्टर कहे नहीं। यदि उसने रिटर्न फाइल कर रखा, चाहे बेशक 139(1) में करे, चाहे 4 में करे, चाहे 142(1) में करे, जिसमें भी रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसका हाई रेट का टीडीएस नहीं कटेगा। तो इन्होंने सर्कुलर से ये रिलैक्सेशन दे दिया। लॉ में सेक्शन 139(1) मतलब ओरिजिनल रिटर्न की बात करता है और ड्यू डेट से पहले वाले
वाली रिटर्न की फाइल बात करता है, लेकिन सर्कुलर में कोई भी रिटर्न हो, चाहे वो बिलेटेड हो, चाहे वो 142(1) कोई भी रिटर्न है, रिटर्न भर दिया है तो डिफॉल्ट से बाहर हो जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस कटता है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल कर देता हूँ तो फिर आपको समझ आने लग जाएगा ये बात। आइए जरा एग्जाम्पल्स में आइए। केस 1 में पढ़िए। केस 1 में क्या है कि कोई पेई है, पेई मतलब जिसको आप पैसा देते हैं, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, रेजिडेंट इन इंडिया है, असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न नहीं फाइल किया और पर असेसमेंट ईयर 20-21 का रिटर्न वो फाइल कर रखा है। दिमाग दौड़ाना नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करेगा नया सेक्शंस। क्यों? उसने पीछे 2 साल में से 1 साल की रिटर्न फाइल कर दी। हमें तो ये चेक करना है कि इस 2 साल में से किसी 1 साल की रिटर्न फाइल, दोनों साल की रिटर्न फाइल नहीं करी क्या, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें से आइए जरा ये लास्ट वाले में जो केस 5 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से दोनों साल में से किसी भी साल का उसने रिटर्न नहीं फाइल किया और टीडीएस का अमाउंट 50,000 से ऊपर है, तो देखिए हायर रेट टीडीएस देखिए। और लेकिन ये हायर रेट टीडीएस लग जाता, लेकिन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में पी नहीं है। तो आपको मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से कि हमें कि 3 चीज चेक करनी है। फर्स्ट कि वो पीछे 2 सालों में रिटर्न डिफॉल्टर है, जब आप टीडीएस काटना है उस समय चेक करेंगे। दूसरा, क्या उन पीछे सालों में उसका टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 से ऊपर है इन ईच ईयर। किसी भी एक साल में 50,000 से नीचे है तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। तीसरा, क्या वो नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में पी है, यदि पी नहीं है, यदि ये है तो ये सेक्शन से बाहर हो गया, उसका हायर रेट का टीडीएस नहीं लगेगा। बहुत क्लियर है इसमें, और इससे ज्यादा प्रोविजंस है नहीं। आपके पास यदि कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये जो हमने जस्ट बताया कि ये सेक्शन 206 ए के साथ पढ़ा जाएगा। यदि वो पैन दे देगा तो टैक्स रेट डबल या 5% व्हिचएवर हायर लगेगा। यदि वो पैन नहीं देगा तो 206 ए और ये सेक्शन 206 ए भी दोनों को साथ में मिला के जो ज्यादा होगा वो लगेगा। इस तरीके का प्रोविजंस आ गया है। तो मैं एक दो एग्जांपल और कर लेता हूं, फिर इसे आपको समझ आने लगेगा। पहला ये क्वेश्चंस में आइए जो नीचे वाला में सबसे लास्ट केस 5, पेई इज ए पार्टनरशिप फॉर्म नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स आउट ए रेजिडेंट इन इंडिया। तो इंडिया में रेजिडेंट है, इसका मतलब है वो पी नॉन रेजिडेंट से तो बाहर ही हो गया। इसने 2 साल में रिटर्न नहीं फाइल करे और पार्टनरशिप फॉर्म में लड़ाइयां हो जाती है, तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल बना दिया। कई बार वो सब होते रहता है लेकिन रिटर्न नहीं फाइल करते, लड़ाई हो जाती है पार्टनर के बीच में, अकाउंट ही सेटल नहीं होते, तो और रिटर्न भी नहीं फाइल किया और इन दोनों सालों में ये इस साल लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है। आप 19, 20 और 20-21 ले लीजिए इसको, इसको 20-21 समझिए। तो आप लोगों ने जो पीपीटी सर्कुलेट किया है ये ले लीजिए। अब क्वार्टर 4 में चलेगा। क्वार्टर 4 में का हायर रेट लगेगा। रेंट का टीडीएस प्लांट मशीनरी पे 2% होता है। यदि पैन फर्निश किया तो सेक्शन 206 ए बी जो हमने जस्ट पढ़ा हायर रेट लगेगा, क्योंकि उसने रिटर्न भी नहीं फाइल किया और वो रेजिडेंट भी है और 50,000 से ज्यादा हर साल में है, पीछे 2 साल में रिटर्न नहीं फाइल किया, तो हायर रेट सेक्शन 206 ए भी लग जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा रेंट में टीडीएस प्लांट मशीनरी में 2% है, तो ये बोलता है कि जो भी टैक्स का रेट है, चाहे वो रेट फाइनेंस एक्ट से आता हो, चाहे वो रेट इनकम टैक्स एक्ट से आता हो, जो भी टैक्स का रेट है वो चेक करिए, वो 2% है। बोलता है कि डबल करिए, उसका डबल किया 4% हुआ, बोलता है कि जो डबल करिए या 5% विच एवर इज हायर, तो पैन दे दिया तो 5%, 4% या 5% जो ज्यादा तो 5% हो गया, और यदि पैन उसने फर्निश नहीं किया तो 20% का टीडीएस कट जाएगा। मेरा ख्याल है एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है इसमें और कुछ बचा नहीं है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस, एनी क्वेश्चंस? इस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। अच्छा, आपको नहीं है। मैं और कोई मेंबर्स को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? क्या ये क्लियर हो गया? ये क्लैरिटी आ गई इस प्रोविजंस की या नहीं आई? एनी अदर मेंबर्स हैव एनी क्वेश्चंस? कोई क्लैरिटी आई या नहीं आई इसके बारे में? कोई डाउट रह गया क्या? यदि नहीं रह गया तो फिर आप लोग बताइए कौन सा सेक्शन पढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास 19:40 ही हुआ है
और आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, या आप बोलेंगे कि और कौन सा सेक्शन कराना है तो फिर वो सेक्शन और करा देंगे। आप लोग को ई कॉमर्स वाला पढ़ना है क्या? ई कॉमर्स वाला करा दूं? यस सर, यस सर। अच्छा रुकिए, तो ई कॉमर्स वाला करा देते हैं, क्योंकि आपने बोला कि 194 क्यों करना है 194। हाँ, ये कंप्लायंस टैब आ जाएगा पोर्टल के ऊपर, वहां से ये चेक हो जाएगा रिटर्न वैलिड, रिटर्न फाइल किया और 50,000 से ऊपर है, वो बोल रहे हैं कि वो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मिलान कर लीजिए, कोई अपना पैन डाल लीजिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए, डाल करके वो रिपोर्ट दे देगा। उसमें से जो कौन रिटर्न डिफॉल्टर है, बस आपको क्वार्टर के शुरू में ये चेक करना पड़ेगा। जब भी कोई क्वार्टर में टीडीएस काटना है तो क्वार्टर के शुरू में चेक कर लीजिए कि वो रिटर्न डिफॉल्टर है कि नहीं। हो सकता है आप हो सकता है सेकेंड क्वार्टर में वो रिटर्न डिफॉल्टर था, उसने रिटर्न भर दी, थर्ड क्वार्टर में तो फिर उसका नॉर्मल टीडीएस कटेगा, हायर रेट का टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए थर्ड में डिफॉल्टर था, फोर्थ में, थर्ड में उसने रिटर्न भर दी, फोर्थ में आप चेक कर लीजिए, तो यदि रिटर्न डिफॉल्टर नहीं है तो फिर उसका हाई रेट का नहीं कटेगा, यदि रिटर्न डिफॉल्टर है तो हाई रेट का टीडीएस चलता रहेगा। तो ये गवर्नमेंट पोर्टल पे देगी, ये सही होगा। एक प्रोविजन और आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन था, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। ये भी 1 जुलाई से, ये 1 अप्रैल 2021 से ये प्रोविजन आया कि जो लोग रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है और उनकी उम्र 75 ईयर से ऊपर हो गई है और उनका किसी बैंक अकाउंट में पेंशन मिलता है और उसी बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो बैंकर उनका सारा कैलकुलेट कर लेगा और सारा डिडक्शन और रिलीफ जो भी है सब छूट दे देगा। 87 टैक्स काट लेगा। यस, यदि वो टैक्स काट लेगा पूरा का पूरा, तो उनको जो ये सीनियर सिटीजन है जिनके 75 ईयर्स प्लस उम्र है और उनका उसी एक ही बैंक में अकाउंट है, उसी में पेंशन भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है, तो दोबारा उनको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो सेक्शन 139, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सेक्शन 139 जो रिटर्न का सेक्शन है, वो सेक्शन को टीडीएस के सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कई सेक्शंस में इन्होंने ये प्रोविजंस कर दिए हैं। नॉन रेजिडेंट में भी पहले इन्होंने प्रोविजंस किया था कि नॉन रेजिडेंट है और उसका यदि एप्लीकेबल टीडीएस का प्रोविजंस है और टीडीएस के एप्लीकेबल प्रोविजंस के हिसाब से उसका टैक्स कट जाता है, फुल टैक्स कट जाता है, उसको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से रेजिडेंट में भी ये सेक्शंस आने लग गया, तो आप 139 सेक्शन को टीडीएस के प्रोविजंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया, 139 में तो लिखा नहीं इन्होंने, अब यहाँ लिखा तो वहां भी कोई क्लैरिटी दे देनी चाहिए थी 139 में कि हाँ टीडीएस में कोई प्रोविजंस में आ गया और फुल टैक्स कट गया है 194P या कोई सेक्शंस के अंदर, तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इन्होंने लिखा सेक्शन में 139 में लिखना भूल गए, वहां भी क्लैरिटी देनी चाहिए थी। हो सकता है कई लोग 139 ही पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ा नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। एनीहाउ, तो जो बैंकर है वो पेंशन और इंटरेस्ट जो भी है उस इनकम के ऊपर जो पूरा क्लब कर लेगा, जो छूट मिलती है वो सारे छूट दे देगा। मतलब हमें जो इन्वेस्टमेंट्स या जो डिटेल्स है वो बैंकर को देना पड़ेगा। बैंकर सारा चीज करके और एक डिक्लेरेशन भी बैंकर लेगा, उसमें वो लिखेगा कि इसके अलावा आपके पास कोई और इनकम नहीं है, लिहाजा आपका पूरा टीडीएस कट गया, अब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये? मेरा ख्याल है ये प्रोविजंस भी हमने कर दिया सीनियर सिटीजन्स वाला, ये हो गया। अब आपका ई कॉमर्स वाला प्रोविजंस है वो मैं करा देता हूँ। मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया तो सेमिनार हो गया। सवाल का जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जरा ये भी कर दिया, राइट। हाँ, ये टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ये एक सेक्शन आया है 194O जो 1 अक्टूबर 2020 से आया है, फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पे ये ओनर शिफ्ट कर दिया है कि जो लोग अपने गुड्स या सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट भी कलेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। और इसका सेक्शन 52 जीएसटी में भी है, वहां भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और इनकम टैक्स में भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट रिलीज करेगा, पेमेंट देगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उनका टीडीएस काट लेगा। वो प्रोविजन सेक्शन 194O में लिखा हुआ है और 194O लगेगा तो 194Q और 206H से बाहर हो जाएगा। ये क्लैरिटी है। दूसरी बात ये है
कि कई केस ऐसे होते हैं जिसमें ई कॉमर्स और ऑपरेटर को पैसा नहीं मिलता है, पेमेंट कस्टमर ने डायरेक्टली उनको दे दिया जिन्होंने सामान सप्लाई करी है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो लॉ में ये लिखा है कि इस सिचुएशंस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटेगा, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, इसमें भी टीडीएस काटेगा, इन ट्रांजेक्शन पे भी टीडीएस काटेगा, क्योंकि ये ट्रैक करना चाहते हैं कि जो लोग सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं उनके सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए। नहीं तो कई लोग वो सेल करेंगे और पेमेंट भी ले लेंगे और इनकम टैक्स में दिखाएंगे नहीं, और जीएसटी में भी टीडीएस कट रहा है। तो इनकम जीएसटी में टीडीएस अंडर सेक्शन 252 टीसीएस बोलते हैं, वहां पर है वो टीसीएस टीडीएस ही, नाम उन्होंने गलत लिखा, टीसीएस है नहीं, बेशक वो भी टीडीएस ही है, नाम उन्होंने लिखा है टीसीएस पर टीसीएस नहीं है, वहां भी टीडीएस कलेक्ट हो रहा है जीएसटी में, और 194 ओ में भी हो रहा है। इन दोनों में सेम फिगर होनी चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि आप कोई ऐसे सप्लायर का काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक डिफरेंस मैं और बता देता हूं, यदि इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उनको क्या 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता है ना इनकम टैक्स में। तो इन्होंने क्या बोला कि यदि इंडिविजुअल एचयूएफ है इस केस में और उनका 5 लाख तक का है सेल या सर्विसेज, तो वो इसमें से बाहर हो जाएंगे यदि वो अपना पैन ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देते हैं। तो वो अपना पैन दे देंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, उनका टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। बाकियों को नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर बाकी को नहीं है। पर जीएसटी में ऐसा प्रोविजन सेक्शन 52 में ऐसा नहीं है, वहां कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वहां कोई एग्जम्पशन है ही नहीं। यहाँ तो 5 लाख वाली है, तो इसलिए इन्होंने 5 लाख की बना दी, और ये 5 लाख फॉर अ फाइनेंशियल ईयर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जो टीडीएस का रेट है वो 1% है, और वो टीडीएस कटेगा, इसमें और कोई नया बात नहीं है। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट कोई नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5 लाख रुपए तक की है, बस ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी हमने प्रोविजंस क्लियर कर दिया। आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें और कोई बात तो है नहीं। टैक्स कब डिडक्ट करना है? हाँ, लेकिन वो तो हाँ, सब लोग ना काटते रहते हैं पर बिल पे, जैसे होते हैं ना वो लिमिट नहीं देखते कि मानती नहीं है सर वो चीजें। अब ऐसा है ना, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लॉ पढ़ना नहीं चाहता कोई आदमी, लोग मजे लेना चाहते हैं। सरकार लॉ लिखती तो है, पार्लियामेंट पास भी करती है, सर्कुलर भी बनाती है, नोटिफिकेशन भी बनाती है, सेक्शन भी बनाती है, पर लॉ पढ़े कौन? इतना लॉ पढ़ने में किसी को मजा नहीं आता, लॉ क्यों पढ़े? वो टीडीएस काट लेते हैं, टीडीएस काट जिसका कट रहा है वो जाए तो जाए कहाँ, वो भी परेशान रहता है। लोग तो उन ट्रांजेक्शन पे भी टीडीएस काटते हैं जिसमें टीडीएस ही नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन पे भी टीडीएस काट लेते हैं जिसमें टीडीएस है ही नहीं, लिमिट भी क्रॉस नहीं करता, फिर भी काट लेते हैं। काटने में मजा आता है, एक्चुअली क्या है लोगों को टीडीएस काटने का राइट दे दिया है ना, तो वो काटने में मजा आता है। जिस पे टीडीएस नहीं होगा प्रोविजन वो भी काट लेंगे, वो बोलेंगे मैं तो काटने का राइट मिला, वो काट लेंगे इस तरीके से है। तो लेकिन लॉ बहुत स्पेसिफिक बात बोलता है कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विसेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख प्रोवाइडेड सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड पैन और आधार टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यदि आप उसको दे देंगे तो टीडीएस नहीं काटने चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा है। बाकियों के लिए इस तरीके से प्रोविजन है। पैन नहीं देगा तो फिर नॉर्मल प्रोविजन लगेगा, जो भी लगता है वो लगेगा। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन जनरल जो एक प्रॉब्लम आती है वो एसएससी को ये रहती है कि भाई उसका टैक्स कट जाता है। हाँ, और जो डिडक्टर है, हाँ, अब जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करा होता है तो वो टैक्स काट लेते हैं। हाँ, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी एसएससी है, हाँ, उसका उसमें 26ES में रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से परस्यू भी उस तरह नहीं कर सकता और उसको और कोई रेमेडी नहीं होती। तो सर ऐसे इशू में, ऐसे केस में वो किस तरह से? बहुत आसान, बहुत आसान है। हाँ। उसका 10 नंबर ले लीजिए, आपको इंटरनेट से भी 10 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर लेकर के टीडीएस वार्ड को लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए। नहीं सर, टीडीएस वार्ड को लेटर लिखने के बावजूद सर एसएससी को अपना जो टीडीएस कटा है वो कैसे उसका बेनिफिट ले? मैं उसको बता दूं ना, ऐसा है, जब ही टीडीएस वार्ड को आप लेटर लिखेंगे ना, आप ये लिखेंगे कि ये हमारा टीडीएस काट लिया, ये रिटर्न का टीडीएस स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा और हमारे 26 में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट उनका केयर अपने आप करेगा। वो जो है ना, टीडीएस वार्ड बहुत ही एक्टिव है, यदि आप उनको लिख देंगे तो फिर उनका अपने क्लास ले लेंगे, तुरंत आ जाएगा 26 में। वो मार्च के आसपास सर्वे होते रहते हैं।
जरे जरे ना टीडीएस आप देख रहे होंगे फरवरी मार्च में सर्वे बहुत होते हैं टीडीएस के, वो ढूंढते रहते हैं, वो तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है एक्चुअली, हमारे जैसे लोग देते नहीं है। इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना कि हमारा ये हो गया, और आपका जब भी खत्म हो जाता है टीडीएस सर्टिफिकेट, मेरी समझ में तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का समय जब भी खत्म हो जाता है तो, और नहीं आया आपका, कोई भी डिडक्टर ऐसे करता है तो उसके रेलिवेंट आप इंटरनेट से ढूंढ लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। उनके वार्ड को भेज दीजिए लेटर के भैया ये टीडीएस काटता है, जमा नहीं करता है, क्या करता है पता नहीं, हमारे में नहीं आ रहा 26 में, और सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। थैंक यू सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चंस है? एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये ट्रांसपोर्टर के केस में और क्लैरिटी चाहिए 194C में सर। क्या ट्रांसपोर्टर में क्या क्लैरिटी चाहिए बताइए, उसमें क्या लिमिट सर, लिमिट है, और सब लोग वो काट लेते हैं वो लोग भी ना ट्रांसपोर्टर का, लिमिट होती है और आप 75,000 हाँ और आपने पैन दे रखा है, आप डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं कि 10 से कम ट्रांसपोर्टर ट्रक है, वो कौन सी वो? हाँ सर वही वाला। हाँ तो क्यों टीडीएस तो काटेंगे? नहीं काटेंगे तब भी काट लेते हैं सर ये लोग। तो अब उसका ऐसा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है काटने, वही मैं बोल रहा हूँ ना, लॉ पढ़ के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बहुत कम है हमारे कंट्री में, लोग लॉ फॉलो कम करते हैं। उनको एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़े अकाउंटेंट भी कम पढ़े लिखे होते हैं, मालिक भी बोलता है अच्छा ट्रांसपोर्ट है ये बहुत तंग किया, ये वो सामान समय से काट ले, इसका नहीं भी लिखा होगा लॉ में फिर भी काट लेंगे कोई नहीं, क्लेम लेना पड़ेगा आपको, और क्या कर सकते हैं, वो तो काट लिया और जमा कर दिया। हाँ जमा नहीं किया तो आपके पास टूल्स है, जमा कर दिया है तो आप लीजिए फिर अपना रिटर्न भर भूर करके अपना क्लेम ले लीजिए, और क्या, काट लिया जमा कर दिया फिर क्या कर सकते हैं, लॉ में जो लिखा है वही कर सकते हैं, और कुछ तो आप कर नहीं पाएंगे। और ट्रांसपोर्टर का बिजनेस ऐसे है कि आपको यहाँ वहाँ दुनिया पूरे हिंदुस्तान में तो जाना पड़ता है, यहाँ से सामान वहां गया, अब वहां सामान खाली किया, ये किया वो किया, पेमेंट लिया, अब कैसे भी चलते रहता है। हाँ थोड़ी है ये प्रॉब्लम, इसीलिए इन्होंने ये प्रोविजन दी थी कि डिक्लेरेशन दे दो, पैन दे दो, टीडीएस नहीं काटने का, पर अब है प्रॉब्लम, ये तो है प्रॉब्लम जी। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है? शरद जी हैं क्या? एनी मेंबर हैव एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो आउट ऑफ द वे पूछ सकते हैं सर से। हाँ हाँ पूछ लीजिए, जो ऐसा मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है नहीं, आप जो है थोड़ा सा काम चलाओ नॉलेज है, उतनी हम बता देंगे बस जितनी नॉलेज है वो बता देंगे आपको, जो है बाकी। सर एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि डिडक्टर की लायबिलिटी अगर नहीं बनती टीडीएस काटने की, हाँ और सेफर साइड में रहने के लिए, जैसे कहते हैं ना कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं है कि काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, हाँ और वो काट लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने, अगर आप कवर्ड नहीं थे टीडीएस के लिए, फिर भी मैंने काट लिया, आप रिफंड ले लीजिएगा, अपने क्लेम में ले लीजिएगा। तो डिडक्टर के ऊपर सच कुछ इस तरह का कोई पेनल प्रोविजन टाइप से नहीं है कि भाई? नहीं कुछ नहीं, कोई पेनल प्रोविजन से नहीं है। क्यों ऐसा है, उसने काट के सरकार को सहूलियत दे दी, सरकार तो और खुश हो जाएगी, चलो भैया इसका नहीं काटना तो वो भी काट लिया, सरकार तो खुश हो जाएगी देखिए ऐसा है, और सरकार को तो और अच्छी बात है, नहीं कटने चाहिए तो उसमें भी सरकार को टैक्स फिलहाल तो मिल गया, अब रिफंड लेकर लेगा आगे जो भी है, अब तो उसमें कुछ है नहीं। अच्छा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर जो है ये आपको कई सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, हमने कल भी वो लिंक शेयर कर दिया था, बहुत आसान सा वेबसाइट है ppsing.org, उस पर आप करेंगे और यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर जो भी आर्टिकल्स या मैटर्स या जो भी चीज आता है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, बहुत आसान सा है वो। आप ppsing.org, मुझे लगता है मैं खोल के एक बार बता देता हूँ कि कहाँ ब्लॉग है, उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स है, मैं देखता हूँ कि ये शेयर हो पा रहा है कि नहीं, शेयर पर न्यूज शेयर, हाँ राइट, मुझे लगता है हाँ ये कोई दिख गया क्या, कोई साइट दिखी आपको, आप लोगों को साइट दिख गई, यस और नो? दिख रहा है सर, दिख रहा है, आपको फोटो? हाँ दिख रहा है, मेरा फोटो दिख रहा है, हाँ चलिए ऐसा है, बहुत बेकार सी फोटो है, एनी हाउ जो रेडी रेकनर, एक तो आपको यहाँ रेडी रेकनर मिल जाएगा, देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रेडी रेकनर मिल जाएगा, इनकम टैक्स के और सब चीज के, अभी माइग्रेशन में है एक्चुअली। देखिए टीडीएस इन सर्टेन स्पेशल केसेस, इनकम टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस
जो ये चैप्टर्स हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। कई लोगों को हमने देखा वो जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं पर स्पेशल प्रोविजंस नहीं पढ़ते, और शायद उस पर फोकस भी नहीं रहता, स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं पढ़ते, बाद में भी शायद नहीं पढ़ते। तो हम कई बार टैक्स पेयर से ज्यादा टैक्स जमा करा देते हैं, क्योंकि स्पेशल प्रोविजंस में काफी जगहों पे टैक्स रेट कम है, तो लिहाजा हमें ये जानकारी होनी चाहिए। ये जितने भी नए जो भी सेक्शंस स्पेशल रेट के हैं वो सारे प्रोविजंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो आपको इस तरीके से रिलेक्नर में बहुत सारी चीज, और भी बहुत सारे रिलेक्नर हैं इसके अंदर, तो आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग में जा सकते हैं। आपको कोई देखिए, हाँ ये ब्लॉग में आ गया। जैसे इनकम टैक्स का मान लो आर्टिकल आपको पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और आप लोगों में से जो कुछ लोग लिख सकते हैं आर्टिकल, तो वो भी इसमें पोर्टल में रजिस्टर करके आर्टिकल लिख सकते हैं। ये देखिए ये सारे बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा इसके अंदर। काफी चीजें आपको मिलेगी जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। फाइनेंस एक्ट का रेट क्या है, ये वो टीडीएस कब काटना है, क्रेडिट और पेमेंट कब होता है, ये सारी डिटेल। और कहीं आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी यहाँ कर देंगे तो उनको भी मिल जाएगा। जैसे टीडीएस का कोई चार्ट है नहीं है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से शेयर कर दीजिए, वो अपना काम चला लेगा जो है। तो हमने एक कोशिश करी थी कि अब सुविधा मिल जाए कि हम अपने लिए भी, हमारे स्टाफ के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी है। और यहाँ जो पीपीटी होती है, जो भी कोई लेक्चर होता है उसका पीपीटी हम डाल देते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे इनकम टैक्स जीएसटी जो भी हैं उनका आपको पीपीटी मिल जाएगा। देखिए जैसे आज प्रोग्राम है उसका पीपीटी हमने कल डाल दिया था। इसी तरीके से जीरो रेटेड सप्लाई, ये वो जीएसटी ऑफिसरों को ट्रेनिंग होती है, या और भी इंस्टीट्यूट के कोई प्रोग्राम होते हैं, ये वो जहाँ भी है, तो आपको पीपीटी मिल जाएगी इसके अंदर। और आपको यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे इसके होम पेज पे, आपको नाम और मेल आईडी डाल देंगे, तो आपको फ्यूचर में जो भी कोई इस पे आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे में ये सब्सक्राइब का बटन है, ये देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब, यहाँ पे सब्सक्राइब में नाम और आप मेल आईडी लिख देंगे तो आपके मेल में लिंक हो जाएगा। फिर आपको जो भी अपडेट है वो मिलता रहेगा, अपने आप आपको अपडेट मिल जाएगा। राइट, तो और कुछ नहीं है, आप बताएं फिर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल कर लेते हैं। हमने जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी वो आपको दे दिया। राइट जी, एनी अदर क्वेश्चंस? यदि कोई क्वेश्चंस है तो फिर ले लेते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों के क्वेश्चन सर अब जैसे सर अभी साइट नहीं चल रही है, तो ये साइट कब तक? नहीं साइट चल रही है। ये कल इवनिंग से मेंटेनेंस में थी, साइट चल रही है। अभी हमने साइट ही खोला था। अच्छा, हाँ ये साइट चल रही है, ये साइट चल रही है। हाँ मेंटेनेंस में थी, वो शरद जी ने भी भेजा था मुझे कि मेंटेनेंस में। हाँ तो सैटरडे को इवनिंग में कोई मेंटेनेंस में डाल दी गई थी, थोड़ी स्लो हो गई थी साइट, तो मेंटेनेंस हो गई, अभी साइट चल रही है। आप कर सकते हैं, आप कर देंगे, हाँ कर सकते हैं, साइट चल रही है अभी। इसमें न्यूज भी आता है, ऊपर में ये न्यूज भी आते रहता है, जो न्यूज है वो भी आते रहता है। इसमें हम अभी क्वेरीज का भी बना रहे हैं, एक इसमें वो टैब क्वेरीज का बना देंगे, जिसके अंदर आप अपना क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। फिर जो हमारी कैपेबिलिटी है या हमारे टीम के जो कैपेबिलिटी है उसमें हम क्वेरीज का जो हो सकता है। मेरा ख्याल है हमने तो डिलीवरी दे दी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी to explain all these provisions of TDS and TCS, recent changes pertaining to that. सर आज का डेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा, और आपने जो भी ये 2 सेक्शंस में जितना कंफ्यूजन था वो सारा कंफ्यूजन मैं समझता हूँ कि अब हमारे सभी जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको सबको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी आपने और भी सेक्शंस कवर करे, हम लोगों के पास समय था, और वो सेक्शंस भी बहुत आपने लाइवली और बहुत अच्छे तरीके से कवर किए, और हम लोगों के काफ़ी कंफ्यूजन दूर हुए हैं। और हम समझते हैं कि आज का जो हमारा ये वेबिनार करने का जो पर्पस था और जो कंफ्यूजन्स डाउट्स जो थे प्रोफेशनल हम लोगों में वो क्लियर हुए होंगे। और फिर कभी सर आपसे फिर एक जीएसटी के ऊपर भी कोई वेबिनार करेंगे सर आपके साथ में, आपको, क्योंकि ये हम लोगों का शायद पहली बार ही फिरोजाबाद स्टडी सर्कल में आपके साथ में वेबिनार हुआ है, और हम लोगों को बहुत इससे मतलब समझने में इस टॉपिक को, इस कंफ्यूजन जो भी थे ये सेक्शन, इसके लिए बहुत अच्छा लगा है। और इसके लिए आपको फिरोजाबाद स्टडी सर्कल की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद।
और थैंक्स। मैं समझता हूँ कि अब जो है वेबिनार को अजय कुछ बोल, अजय थैंक्स बोल दो, अजय वोट ऑफ थैंक्स। हाँ, मैं फरीदाबाद स्टडी सर्कल से सर स्पीकर सर पीपी सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सेक्शन 194Q और सेक्शन 2061H का बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, जो कि बहुत इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया जो कि हम पढ़ के नहीं समझ सकते थे, और हमारे सारे मेंबरों ने बहुत अच्छी तरह सुना और सर ने अपनी सारी क्वेरियों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, तथा जो मेंबर यहाँ पे ज्वाइन है सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, थैंक यू।